اگر ایک بات کرتا ہوں، اگر میں چھوڑ بھی دوں جماعت احمدیہ کو، تو کیا مجھے جب دوسری طرف میں آؤں گا تو مجھے کیا وہ عقائد نہیں اپنانے پڑیں گے دوسرے والے فرقے کے؟ مثال کے طور پہ اگر میں سمجھتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ فوت ہو چکے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ مجھے بعد میں یہ تسلیم کرنا پڑے گا وہ فوت نہیں ہوئے، وہ زندہ ہیں۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اچھا ایک ہو گیا یہ، اور تو یہ میں نے تو آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ یہ کوئی میرے نزدیک جزو ایمان تو نہیں ہے، لیکن پھر بندہ کہے کہ وہ ادھا تتر ادھا بٹیر کہ چھڑ گیا، ڈب لیکن کڑبا. کہ بھئی چھڑ گیا لیکن گل اتھے ہی رکی ہوئی ہے کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے نہیں، وہ نہیں آن لگے۔ سمجھ گئے؟ اچھا اے میں گل تھوڑی سمجھنا، جہے میں بندیاں نو پاکستان جاننا نا جنہاں نے میرے سامنے قادیانیت چھڈی سی، تقریباً وہ 4-5 بندیاں نو میں جاننا وا، اور انہاں دا قادیانیت چھڈن تو بعد بھی ایک شیخ صاحب ہر یہ خیال سی کہ شاید عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ نازل نہیں ہونا اور وہ فوت ہو گئے نے۔ اس مسئلے دا حل بڑا آسان ہو جاتا ہے، شاید انہاں بندیاں نو اگے کوئی نہ میرے ہر دا بندہ ملیا نہیں سی۔ یہ میں تمہیں حل دس دینا وا، تو انشاءاللہ تسی مان جاؤ گے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ نے، یعنی زندہ اٹھا لے گئے نے اور وہ قرب قیامت نازل ہون گے۔ یہ کوئی ایڈا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن میں نے اس کے اوپر میری اتنی ریسرچ نہیں، لیکن جتنی میں نے قرآن سے دیکھی ہے، یہ نہیں کہ مرزا صاحب نے کہہ دیا تو بس مان لیا کیونکہ جی مرزا صاحب نے کہا ہے، لیکن قرآن کی آیتوں سے بھی میں نے دیکھا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آیت کا جس کا ترجمہ ہے کہ حضرت عیسیٰ اور مریم جو ہیں وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ اب اگر آپ مجھے یہ کہیں کہ میرے والدین، یا میں کہوں میرے والدین، آپ کو نہ پتا ہو میرے والدین زندہ ہیں یا فوت ہو گئے ہیں، میں یہ کہوں کہ جی میرے والدین کھانا کھاتے تھے، تو آپ کے دماغ میں کیا چیز آئے گی کہ اس کے والدین اب نہیں ہیں؟ یا تو میں کہوں میرے یہ تو والدین نارمل کھانا کھاتے ہیں، یہ اس تو کا مطلب نارمل ہے کہ حالات میں ہے نا۔ جھوٹا ہوں۔ اگر میرے والد کے بارے میں قرآن میں یہ آیت آئی ہوئی ہو، وما قتلوہ یقیناً بر رفعہ اللہ علیہ، اگر یہ آیت آئی ہوئی ہو، پھر تو میں یہ نہیں نہ کہوں گا کہ اب وہ فوت ہو گئے ہیں کیونکہ کھانا کھاتے تھے اب فوت ہو گئے ہیں، یہ تو نہیں کہوں گا۔ میں کہوں گا وہاں پر تو قرآن میں آیا ہوا ہے بر رفعہ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا ہے، رفع کر لیا ان کو اپنی طرف۔ یہ بھی تو قرآن میں ہی آیا ہے کہ وہ کھانا کھاتے تھے، دونوں کھاتے تھے۔ ہاں وہ تو ان کی الوہیت کی نفی کرنے کے لیے جمیل صاحب اپنا فیض شیخ صاحب، ان کی الوہیت کی نفی کرنے کے لیے قرآن نے کہا ہے کہ جو کھانا کھاتے ہیں، جن کے ساتھ دنیاوی حاجات لگی ہوئی ہیں، بول و براز کی، بھوک کی، پیاس کی، غصے کی، پسینہ آتا ہے، مطلب گرمی لگتی ہے، ٹھنڈ لگتی ہے، جو انسانی بشری جسم کے ساتھ اس دنیا میں زندہ تھے، وہ الوہیت کے درجے پر نہیں ہو سکتے۔ الہ وہ ہے جو ان حاجات سے پاک ہے، نہ اس کو کھانے کی حاجت ہے، نہ بول و براز کی حاجت ہے، نہ بیوی کی، بیٹے کی حاجت ہے۔ بات سمجھ گئے ہیں؟ پھر جو قرآن میں ایک اور آیت ہے کہ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں اور جہاں کہیں بھی رہوں، ساتھ یہ بھی ہاں جہاں کہیں بھی رہوں، ہاں نماز پڑھوں اور ہم، زکوٰۃ دوں۔ ہم۔ تو اب اگر اس وقت حضرت عیسیٰ، میرا سوال یہ ہے کہ وہ کہاں نماز پڑھ رہے ہیں اور کس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں؟ اصل یہ سوال ہے، یہ بہت آسان اس کا جواب ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ میں نے ان کو اپنی طرف رفع کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے یا وہ جو آسمانی دنیا ہے وہ ایک برزخی کیفیت ہے، اس کے بارے میں ہماری سوچ سے وہ چیز اونچی ہے، ہم اس کا ادراک نہیں کر سکتے۔ بات سمجھ گئے ہیں؟ نہ اس زندگی کا آپ آج، میں آپ کو پیچھے کی بات بتاتا ہوں، آگے کی تو آپ کہیں گے کہ آگے کی تو چلو یہ تو کہانی ہوگی، کہانی شریف۔ جب میں اور آپ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، اس کا ہم ادراک کر سکتے ہیں آج کہ ماں کے پیٹ میں ہم کیسے زندہ تھے، کون ہمیں وہاں کھانا دیتا تھا، کون ہماری حاجات کیسے پوری ہوتی تھی، زندہ کیسے تھے۔ ایسے ہی احمد عزیز صاحب، ماں کے پیٹ میں بچہ خوراک لے ہی رہا ہوتا ہے۔ نہیں، میں نے صرف ایک بات آپ کو صرف اس لیے پیش کی ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جن کا ہم اس دماغ سے اس وقت جو ہمارے سر میں
गरारी चल रही है ना, इससे हम उन चीज़ों का इदराक ही नहीं कर सकते। वो चीज़ें हमारे अप्रोच से बाहर हो जाती हैं कुछ चीज़ें। यानी जिस तरह आपका जहाज़ है वो 35,000 फुट की बुलंदी तक जाता है, उससे ऊपर उसकी लिमिट ख़त्म हो जाती है ना, ऐसे ही इंसान के दिमाग की भी एक लिमिट है, उसकी सोच की ऊंचाई की एक लिमिट है, उससे ऊपर वो लिमिट ख़त्म हो जाती है, उससे ऊपर नहीं जाता। मसला ये है, ईसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने कहा उठा लिया है, अब वो बरज़खी ज़िंदगी किस तरह की है हम उसका इदराक नहीं रखते। जब वो इस दुनिया में जितनी देर वो रहे या वो दोबारा आकर ज़िंदगी गुजारेंगे, तो वो कुरान का हुक्म उन पर लागू होगा कि जब तक वो जिंदा रहेंगे नमाज उन पर फ़र्ज है, ज़कात देना, ये जो हुक्म है ये बशरी ज़िंदगी के साथ जुड़े हुए हैं, ना कि बरज़खी ज़िंदगी के साथ जुड़े हुए हैं। समझ आई ये बात कि नहीं? बात तो मैं समझा, लेकिन अगर उसमें ये वजाहत हो जाती कि भाई जब मैं मतलब आसमान पर उठाया जाऊंगा उस वक्त कोई वक्फा आ जाएगा इस चीज में, और जब मैं वापस आऊंगा फिर ये दोबारा ये प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी। और दूसरा जो कुरान का असूल है, कुरान कहता है कि आप उम्र के साथ साथ बूढ़े होते हैं, उम्र के साथ साथ आप बूढ़े होते हैं। तो अगर हजरत मूसा जिंदा हैं तो फिर इस वक्त उनकी उम्र क्या है? ये इसके लिए बहुत आसान मिसाल कुरान में मौजूद है असहाब कहफ की, कि अल्लाह ताला ने ना उनको बूढ़ा होने दिया, ना वो खाना खा रहे थे, वो दुनिया में ही अल्लाह ताला ने उनको वो बरज़खी ज़िंदगी कई सौ साल तक दे दी। ना खाने की हाजत रही, ना वो बूढ़े हुए, ना उनके बाल लंबे हुए, ना उनके नाखून बढ़े, ना उनको बोलो बराज की हाजत रही, कई सौ साल तक सोए रहे। तो इस बात को जब तक आप ये तस्लीम नहीं करेंगे कि कुरान तो सारा इन्हीं मौजज़ात से भरा हुआ है, जब तक आप उनको तस्लीम नहीं करेंगे, आप ईसा अलैहिस्सलाम को भी नहीं मान सकते कि उनको अल्लाह ताला ने उठा लिया, वो बरज़खी ज़िंदगी से ज़िंदा है जिसका हम इदराक नहीं रखते। वहाँ पर खाना क्या खा रहे हैं, बाल किस तरह के हो गए होंगे, बूढ़े हो गए होंगे, उम्र किस तरह, इसका हम इदराक नहीं रखते। अच्छा, फिर एक और आयत जिसका तर्जुमा भी मेरे पास कुरान तो नहीं है, लेकिन उसका तर्जुमा ये है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया कि ए मोहम्मद तुम क्या समझते हो, यानी कि जो तुमसे पहले आए हैं वो जिंदा रहे और तुम मार दिए जाओगे, यानी आपको वफात दे दी जाएगी, और जो आपसे पहले थे वो जिंदा रहेंगे। तो हजरत ईसा तो उनसे पहले ही थे। नहीं, इस तरह नहीं है बात। कुरान में इस तरह की कोई आयत नहीं है कि आपसे पहले सारे जितने थे वो फौत हो गए हैं। हाँ, एक असूल बयान किया गया, इन्ना का मैयतुन, इंसान यानी कि कहा गया, तो हजरत ईसा हाँ, तो इंसान ही थे ना। मैं वो असूल कुरान ने गलबन सूरा जुमर में है या आखिरी सूरतों में से किसी में है, इन्ना का मैयतुन व इन्ना हम मैयतून, इनको भी मरना है ए हबीब, आपको भी मौत आनी है। तो वो एक असूली बात बयान की गई है, और वो पीछे भी बयान की, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका शायद चखना का मैं है। आपको बता दूं, तो शायद का तर्जुमा इस तरह नहीं है कि सबको आनी, उसमें ये था कि जैसे ये कहा जा रहा है, जैसे उसका लब्बे लुबाब ये है कि यानी तुम क्या समझते हो कि भाई आपको मौत आ जाएगी लेकिन आपसे पहले वाले जिंदा रहेंगे? ऐसा नहीं होगा। यानी कि भी आप क्या समझते हैं कि आपसे आपको वफात दे दी जाएगी लेकिन जो आपसे पहले हैं, आयत कौन सी है, कौन सी आयत की तो मैं बात कर आपको रहे हैं? हवाला दे दूंगा इसका, अभी मैं नहीं हूँ। बारह लगर इस कुरान में किस्म कोई की ऐसी, आयत, इस हाँ किस्म की और एक और भी आयत है जिसमें मैंने पढ़ा था कि जब अल्लाह ने इरादा कर लिया मरियम और ईसा को हलाक करने का। अब अल्लाह ने इरादा किया है, ये भी कुरान की एक आयत है कि जब अल्लाह ने इरादा कर लिया हजरत मरियम और ईसा को हलाक करने का। तो अब हलाक करने का, हाँ, हाँ, वो भी मैं आपको दे दूंगा। तो वो कहने का मतलब ये है कि फिर जब अल्लाह ने अगर इरादा कर लिया, नहीं इस तरह की तो मेरे ख्याल से कोई आयत नहीं है कुरान में हलाक करने के अल्फाज तो। अहमद भाई वो आयत है कि मैं आपको अगर पता है, मैं अल्लाह, आपको दे देता हूँ सुन सर। ले, नहीं 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 नहीं, वो ऐसे नहीं है, वो ऐसे है कि अगर अल्लाह ईसा और उसकी माँ समेत सारी दुनिया को हलाक कर दे तो अल्लाह का कोई क्या बिगाड़ नहीं नहीं लेगा? नहीं, सारी वो दुनिया तो ये नहीं है बता। उसमें, सारी दुनिया का नहीं है जिक्र, ये दोनों। अच्छा, वो जो अच्छा, मैं पहले आपको आप आयत आयत बता कर दूं। रहे थे ना पेश, वो जज्जा शायद उसका तर्जमा लिख रहा है कि तुझसे पहले हमने किसी को हमेशा की जिंदगी अता नहीं की, ये कैसे हो सकता है कि तू फौत हो जाए और वो जिंदा रहे? ये इस तरह यही की मैं कोई कह रहा हूँ आयत, ना, ये चीजें हैं। अगर ये है तो ये एक असूली बात है कि किसी को भी हमेशगी की जिंदगी अल्लाह ताला ने नहीं अता की। हम भी मानते हैं कि किसी को नहीं अता की, ईसा अलैहिस्सलाम की हो
یا असहाब कहफ की हो, वो एक पीरियड है, 300 साल है, 2000 साल है, 1000 साल है, उसके बाद उनको इस दुनिया में जिंदगी गुजार के फौत होना है। ईसा अलैहिस्सलाम को भी फौत होना है। हम कब कहते हैं उनको फौत नहीं होना? नहीं, फोर्थ तो सबने होना है, वो तो ठीक है। हज़रत ईसा अगर आएंगे भी आके, जाहिर बात है फोर्थ ही होंगे, फिर उसके बाद जितना अरसा भी जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन यहाँ ये कहना नबी करीम को कि मतलब इस तरह कहा जा रहा है कि तुम क्या समझते हो कि तुम हलाक कर दिए या तुम्हें मौत दे दी जाएगी, लेकिन तुमसे पहले वाले जो हैं वो जिंदा। या तो ये होता ना कि भाई हाँ कोई होगा एक आधा जो तुम्हारे बाद फौत होगा और तुझे मैं वफात दे दूंगा, यानी अल्लाह ताला अगर ये कहता तो बात क्लियर हो जाती। लेकिन ये कहा गया कि तुमसे पहले जो आए हैं वो जिंदा रहेंगे और तुम्हें फौत कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो ये चीजें थोड़ा सा डाउटफुल होती हैं, करती हैं ना। आप कहते हैं ना कि छोड़ो इन चीजों को, उन बातों को, तो ये जब ये चीजें आमिर भाई ये आया था, ये आया था। कुल फमन यमलिकु मिनल्लाहि शैअन इन अरादा अन युहलिकल मसीह इब्न मरियम। यार ये मुझे कम नजर आ रही है। मैं पढ़ देता हूँ आपको। बिस्मिल्लाह। अगर अल्लाह ताला मसीह इब्न मरियम, इसकी वालदा और रूए ज़मीन के सब लोगों को हलाक कर देना चाहे तो कौन है जो अल्लाह पर कुछ भी इख्तियार रखता हो? हाँ सही है, अल्लाह ताला अगर ये सारी कायनात को ख़त्म करना चाहे, कौन है जो इख्तियार रखता है इस पर? अल्लाह ताला जिसको चाहे जब तक चाहे ज़िंदगी दे, जब चाहे मौत दे। ये तो तसूली बातें हैं। सियाल साहब तुसी उत्ते आओ है वफाते मसीह ते हयाते मसीह ते तुसी ये जो चंगी गल नहीं, इसमें जानते हो। आमन नजीर साहब, इसमें ये जो लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है कि इब्ने मरियम और इसकी वालदा और रूए जमीन के सब लोगों को हलाक, ये और रूए जमीन के सब लोग कहाँ से आया है? रूए ज़मीन के सब लोगों को व उम्महु मन फिल अर्दी जमिया। एक मिनट बिलाल भाई आप खामोश। जब अल्लाह ताला ने ये कहा कि आप इनसे कह दीजिए कि अगर अल्लाह ताला, कुल फमन यमलिकु मिनल्लाह, कह दीजिए कि अगर अल्लाह ताला ये चाहे इस चीज़ का, शया इस शय का, इन अराद अन युहलिकल मसीह इब्न मरियम, अगर अल्लाह ताला ईसा इब्न मरियम को व उम्महु और उनकी वालदा को वमन फिल अर्ज जमिया और ज़मीन पर सारे लोगों को हलाक कर देना चाहे, मार देना चाहे, तो कौन है जो उसके जो इस बात पर इख्तियार रखता है? अल्लाह के सिवा कौन है जो उसको रोकने वाला है? कौन है जो उसका हाथ पकड़ने वाला है? मालिकुल मुल्क है, ये उसकी मखलूक है। ईसा इब्न मरियम भी उसकी मखलूक है, सदीक़ा भी उनकी मखलूक है, अल्लाह ताला की मखलूक है, हम भी उसकी मखलूक हैं। इसमें कोई ऐसी बात है नहीं, सिर्फ इतना ही है अगर अल्लाह ताला इनको मार देना चाहे, ईसा इब्न मरियम को कोई नहीं बचा सकता, उनकी वालदा को मारना चाहे कोई नहीं बचा सकता। पूरी मन फिल अर्ज़ जमिया, अल्लाह की इस धरती पे सबको मार देना चाहे कोई नहीं उसको रोक सकता। ये तो आसान बात है। इसमें आमिर भाई थोड़ा शुरू से आयत पढ़े ना तो आपको मजीद इसमें इंशाल्लाह हो जाएगा। हाँ वो तो मैंने पढ़ लिया। लक़द कफ़र लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्न मरियम, कि वो काफिर हैं जो कहते हैं कि ईसा इब्न मरियम इलाह है, अल्लाह है। कह दीजिए कि अगर अल्लाह ताला इनको, ईसा इब्न मरियम को, उनकी वालदा को और सारे फिल अर्ज़ जमिया, मन फिल अर्ज़ जमिया, ज़मीन में तमाम लोगों को मारना चाहे, कोई नहीं है जो उसको रोक सकता। तो ठीक है बात, इसमें क्या गलत बात है? इसमें से ये कहाँ बात लिखी हुई है कि वो मार दिए हैं अल्लाह ने? अगर इसमें यही कहा जाता है शायद में कि तमाम लोगों को जो जमीन पे हैं उसमें वो भी आ जाते, उन दोनों का स्पेसिफिकली नाम क्यों लिया गया है? क्योंकि आयत का देखें ना, ऊपर सियाक ये है कि आयत में जिक्र ही उनका हो रहा है कि वो लोग, उन्होंने कुफर किया, वो काफिर हो गए जिन्होंने ईसा इब्न मरियम को अल्लाह कह दिया, अल्लाह बना लिया। उनका जिक्र करके अल्लाह ताला ने उनकी तखसीस इसलिए की क्योंकि जिक्र उनका है। तो कह दीजिए कि अगर अल्लाह ताला ईसा इब्न मरियम को, उनकी वालदा को और इवन ये जो दुनिया भर में सारे इंसान सबको हलाक करना चाहिए, तो कौन है जो उसको रोक सकता?
ان کا ذکر اس لیے آیا کیونکہ پچھلے ٹکڑے میں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اس آیت میں کیا ہے؟ ارادہ کیا یا ارادہ کرے؟ اگر ارادہ کر لے، ان ارادہ اگر ارادہ کر لے، ان تو اگر ہی ہوتا ہے، یہ تو عربی میں میرا خیال ہے آپ گوگل پہ بھی ان کا معنی لکھیں گے تو اگر ہی آئے گا، آسان سا لفظ۔ اگر اللہ تعالیٰ ارادہ عمر کر بھائی لے، جی ایک بات میں ایڈ کر سکتا ہوں اس میں؟ آواز نہیں اچھا، آ رہی یہ جو آیت لکھی ہے نا، میں عمر بھائی یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آیت لکھی ہے نا، اس کا سیاق و سباق اگر دیکھیں نا تو جو عیسائی ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کیوں مانتے تھے، وہ وجوہات کیا تھی؟ ان وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ کر کے اٹھا لیا گیا ہے، یعنی کہ وہ مرنے کے بعد زندہ ہوئے اور اٹھا لیا گیا۔ موت ان پہ تو حاوی یہ نہیں ہو دلیل سکی وہ یا دیتے موت تھے، پر وہ حاوی ہو، ہاں ہاں یہ بات جی جی، یہ وہ دلیل دیا کرتے تھے کہ جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام، ابھی بھی آپ جوزف صاحب کو بلائیں گے نا واپس، وہ یہی آپ کو بتائیں گے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر موت آئی لیکن وہ موت پر حاوی ہو گئے، کیونکہ معاذ اللہ وہ ان کو الہ مانتے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ وہ موت پر حاوی ہو گئے اور وہ موت کو انہوں نے پچھاڑ کے دوبارہ زندہ ہو کے لوگوں کو دکھا دیا، یہ ان کو یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی کی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو مارنا چاہے، ان کی ماں کو مارنا چاہے، من فی الارض جمیعہ، سب کو مار دینا چاہے، تو کوئی نہیں جو اللہ تعالیٰ کو روک سکے۔ موت کا اچھا اس یہاں لیے پہ عمر بھائی میرا پوائنٹ یہ تھا، میرا پوائنٹ اصل میں جو سمجھنے والا ہے، پوائنٹ جو میں رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نفی بالکل نہیں کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو میں نے مار دیا ہے یا ان کو وفات دے دی ہے، موت دے دی ہے، اس کی نفی ہرگز نہیں کی۔ یعنی کہ حالانکہ ان کا عقیدہ تھا لیکن قرآن نے رد نہیں کیا اس عقیدے کو، حالانکہ جیسے سلیب کے عقیدے کو رد کیا اور قتل کے عقیدے کو رد کیا، لیکن اس عقیدے کو رد نہیں کیا، بلکہ صرف اتنا ہی بتا دیا کہ اگر میں مارنا چاہوں، اگر میں ارادہ کر لوں تو کون ہے مجھے روکنے والا؟ صحیح۔ اور پھر شیخ صاحب عیسیٰ علیہ السلام والا تو مسئلہ ہی کو نہیں، مرزا صاحب دیاں گلاں تساں ویکھ ہی لیاں نے، انہاں نوں چھڈو پیچھے ہٹو تے عیسیٰ علیہ السلام دی گل تے ایک فکرے چل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس آیت میں تو صرف لیکن تسلیم امن ریزن میرے یہ سوال ہے میرے دماغ میں جو اٹھتا ہے کہ اس آیت میں چلیں دو بندوں کا تو نام لیا گیا نا، حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کا، باقی تو عام لوگوں کی بات کی گئی جو زمین پہ موجود ہیں انسان۔ تو اگر یہ چیز حضرت عیسیٰ پر ابھی تک لاگو نہیں ہوئی تو حضرت مریم پہ کیسے ہوگی؟ ان کو کیوں وفات دے دی گئی؟ ان کو بھی پھر ابھی تک زندہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ دو بندوں کے نام لیے گئے ہیں تو یہ دلیل ان کے اوپر بھی آنی چاہیے تھی حضرت مریم پہ بھی کہ وہ بھی ابھی فوت نہیں ہوئی، وہ بھی زندہ ہے۔ اگر ارادہ ویسے دونوں تو کا کر لیا گیا تھا تو ایک کو کیوں، یا تو یہاں پہ لکھا جاتا خالی حضرت مریم کا نام تو بات سمجھ آ جاتی کہ حضرت مریم فوت ہو چکی ہیں، ان کی وفات ہو گئی ہوئی ہے، لیکن جب دونوں کا نام لیا گیا تو پھر دونوں کو سیم سچویشن میں ہونا چاہیے، جو میری ناقص دو کا عقل میں نام بات نہیں ہے۔ لیا، من فی الارض جمیعہ بھی ہے نا آگے۔ نام لیا ہے، نام لے کے کہ حضرت عیسیٰ کا اور حضرت مریم کا۔ ہاں ہاں، اب ان میں سے نام تو لینے ایک، کا اب ان میں نام لینے کا یہ کیسے مطلب نکلا کہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا تو مریم علیہ السلام کو بھی اٹھا لینا چاہیے تھا، یہ کیسے معنی نکل گیا؟ دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں، یہ آپ کے ذہن میں یہ شک پڑ گیا ہے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی ابدی حیات مانتے ہیں۔ بھائی ابدی حیات صرف اللہ کی ہے، ہمیشہ ہمیشہ والی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اتنی ہی ہے جتنی کہ صحابہ کہف کے سال ہیں، وہ 300 سال ہیں، یہ 2000 سال ہو گئے، اور 2000 سال بھی ہو جائیں تو بھی سال ہی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کی نہیں ہے۔ آج مارو نعرہ چھڈو مرزا صاحب نو، عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور وفات کے ساتھ مرزا صاحب کا کوئی لینا دینا نہیں، خام خواہ کہانی گڑی ہے۔ میں ڈاؤٹ فل تو آپ لوگوں کی کتابیں اور حدیثیں بھی ہیں وہ بھی ڈاؤٹ فل تھوڑا سا کرتی ہیں، جیسے بعض جگہوں پہ لکھا ہے کہ جی حضرت عیسیٰ کی عمر 120 سال تھی، اور عام طور پہ یہی کہا جاتا ہے، شاید کسی حدیث میں ہی ہے کہ ایک
ایک نبی کی عمر دوسرے نبی سے اتنے فرق ہو سکتا ہے اتنا 60 وہ صحیح نہیں ہے، وہ روایت صحیح نہیں ہے. اب یہ اس کا کیا کریں میرے عامر نذیر صاحب کی جو روایت کہیں کوئی ہاتھ پلہ پکڑاتی ہے وہ صحیح نہیں ہوتی، یہ کیا کریں؟ جمی اپنا فی شیخ صاحب ضعیف روایتیں تو اتنی زیادہ ہیں، موضوع اور من گھڑت اتنی زیادہ ہیں، اگر آپ سب کو صحیح مانیں تو کام چل ہی نہیں نہ سکتا. پھر تو آپ کوئی چیز ایک پکڑیں گے اس کے خلاف دوسری کھڑی ہوگی، دوسری پکڑیں گے تیسری اس کے خلاف. ہم نے دیکھنا تو جو صحیح بات ہے وہ لینی ہے نا. ایک ہی چیز نہیں پکڑی جاتی ہے عامر نذیر صاحب. اب جیسے معراج کا واقعہ ہے، اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ آپ جب کہ آپ نے کن کن نبیوں کو دیکھا، تو ان میں جن نبیوں کو آپ نے دیکھا حضرت عیسیٰ کو بھی ان کے ساتھ دیکھا، اور وہ جو نبی ان کے ساتھ ہے وہ تمام فوت شدہ ہیں. تو پھر وہ ایک زندہ نبی فوت شدہ نبیوں کے ساتھ کیا کر رہا تھا؟ خود نبی پاک نہیں زندہ تھے، وہ تو ان کو تو دکھایا گیا نا. نہیں خود نبی پاک نے جماعت کرائی ہے. نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں نا، ان کو تو وہ تھے جن کو دکھایا گیا سب کچھ، جو بھی وہ تو دکھایا نہیں گیا، نہیں جو کام نبی پاک نے کیا ہے وہی عیسیٰ علیہ السلام نے کیا. صرف نبی پاک آگے تھے، وہ پیچھے تھے مسلح پہ. نبی پاک نے بھی نماز پڑھی، انہوں نے بھی نماز پڑھی ہے نا. نبی پاک زندہ، ایک منٹ، نبی پاک زندہ ہو کر ہوئی تھی نا، ان کی تو سب کی وفات ہو چکی ہے. اب ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ انہوں نے فوت شدہ کو دیکھ کیسے لیا. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے فوت شدہ لوگوں کو دیکھا کیسے. یہ تو انہوں نے ہی بیان کیا کہ میں نے دیکھا، لیکن وہ جو 4-5 بندے جتنے بھی تھے باقی نبی، وہ سارے فوت شدہ تھے، حضرت عیسیٰ بھی ان کے ساتھ ہی تھے. یا تو حضرت عیسیٰ ادھر نہیں ہونے چاہیے تھے نا، کیونکہ وہ زندہ تھے، ان کو ادھر ان کے ساتھ کوئی کام نہیں تھا، وہ ادھر نہ ہوتے. پھر شیخ صاحب یہ معجزہ ہے، معجزات کو عقل پر نہ پرکھا کریں، یہ چھوڑ دیں کام. اگر معجزات کو عقل پر پرکھیں گے تو یہ جو نیچری بنے ہیں نا سر سید کے پیروکار، یہ مرزا صاحب نے بھی ادھر سی چیزیں لی ہیں کہ اسرائیل آ کے اتنے لوگوں کی جان نکال نہیں سکتا. لمحوں میں اسرائیل کے نزول کا انکار کر دیا، ملک الموت کے نزول کا انکار کر دیا، کیونکہ عقل نہیں مانتی. یہ اس کو کہتے ہیں نیچری، یہ نیچری سوچ نکال دیں. یہ ایک معجزہ ہے، برزخی معاملہ ہے. وہاں پر سارے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ تن اکٹھا کیا اور نبی علیہ السلام کو ان کی امامت کا شرف عطا کیا. بس اتنی بات ہے. سیال صاحب آپ کو بات کرنا چاہتے کر لیں، میں کھانا کھا رہا ہوں. جی بھائی عامر نذیر صاحب چلے گئے آپ؟ میں ادھر ہی ہوں. آج فی شیخ صاحب نے نا مرزا صاحب کو چھوڑ دینا ہے، اس لیے میں ان کے حل کر دوں گا انشاءاللہ. حیات وفات والا مسئلہ کوئی ایڈا بڑا مسئلہ نہیں ہے. ابھی ایسے نہ کریں، ایسے نہ کریں، یہ اتنا آسان نہیں ہوتا. چھڈاؤ جان، ہوں اینے مہینے ہو گئے نے، کوئی گل رہ گئی ہے؟ کیڑی گل مرزا صاحب دی سچی؟ مرزا صاحب تو کتاباں ساریاں کالیاں، کتنے جھوٹ بول بول رہے. اینج نہ کیا کرو کہ کوئی گل سچی ہے، بتھیریاں سچیاں آئیاں، وہ تسی میں دسن بہ جاں، تسی مننی نہیں تے دسن دا فائدہ ہی نہیں نا ہے. سمجھے نہیں گل؟ میں کہہ رہا ہوں کہ جی ایسی بات نہیں ہے کہ مرزا صاحب کی کوئی بات سچی نہیں ثابت ہوئی. میں نے کہا میں بتانے لگ جاؤں تو آپ نے کون سا مان لینا، آپ نے کہنا نہیں جی یہ ایسے نہیں، یہ ایسے. شیخ صاحب جس بندے کا دعویٰ، میری بات مثال دیتا ہوں. آپ اکثر بات کرتے ہیں، میں سنتا رہتا ہوں، ثناء اللہ امرتسری، مولانا سلام امرتسری. مرزا صاحب بھاگ گئے، اس نے چیلنج قبول کر لیا، یہ ہو گیا. پھر وہ مرزا صاحب اس کی زندگی میں فوت ہو گئے، وہ پتہ نہیں 20 سال بعد فوت ہوئے مولانا امرتسری صاحب. یہ میں سنتا ہوں چپ کر کے، لیکن میں یہ دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ یار شاید واقعی عامر نذیر صاحب کو کچھ باتوں کا علم نہیں ہے، یا پھر عامر نذیر صاحب جان بوجھ کے چھپا رہے ہیں کہ یار وہ نہ میرے لوگوں کو بات پتہ چل جائے کہ بیچ میں ہوا کیا تھا. اب میں نے بھی یہ سارا پڑھا ہوا ہے، یہ قصہ جو مولانا امرتسری کا ہے، ثناء اللہ امرتسری کا. وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے چیلنج قبول کیا، ٹھیک ہے. مرزا صاحب نے اس کے بعد انہیں کہا کہ بھئی اس طرح نہیں ہے، تم ایک کام کرو، میرے خلاف ایک اشتہار جاری کرو جس میں میرے دعوے لکھو
کہ یہ شخص یہ دعوے کرتا ہے، جو بھی آپ کہہ لو، بروزی نبی آنے کا، مجدد ہے، مسیح موعود جو ہے، جو بھی واٹ ایور، اور یہ اپنے دعووں میں جھوٹا ہے. اور میں مطلب اس کے لیے یہ ہم ایسے کرتے ہیں، دونوں دعا کرتے ہیں کہ جو جھوٹا ہے وہ سچے کی زندگی میں مر جائے. یہ اشتہار جاری کرو. یہ اب کوئی، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی بڑی شرط تھی کہ جس کو بندہ سوچی پہ جائے کہ یار ایک ہی انہیں کہہ دیتا ہے یہ منا گا تو کی ہو جائے گا تو کی ہو جائے گا. مولانا صاحب نے صاف انکار کر دیا. میں آپ کو ان کی کتاب کا حوالہ بھی دوں گا کہ اس کا، وہ انہی کی کتاب ہے مولانا صاحب کی. انہوں نے کہا کہ بھی بات یہ ہے کہ میں اس قسم کا اشتہار چھاپنے نہیں چھاپوں گا، کیونکہ تمہارے تو دعوے ہیں، تم معمول من اللہ ہو، تم یہ ہو، تم وہ، کیونکہ میرا اس قسم کا کوئی دعویٰ نہیں ہے، لہذا میں اس قسم کا اشتہار چھاپنے سے ڈرتا ہوں. انہوں نے دل چ کتنے آئی سی، پتہ نہیں سچا ہی نہ ہوئے، کتنے کام ہی نہ خراب ہو جائے. گل سمجھو، انہوں نے یہ گل تو نہیں کہی کہ تو سچا نہیں، انہوں نے کہا کہ جو میرے تو دعوے کوئی نہیں ہے ہو جائے، لہذا میں نہیں اس قسم کا اشتہار چھاپ سکتا. انہوں نے اس کا میں جواب دینا چاہتا ہوں. میں نہیں، سن لیں، ابھی پوری بات نہیں ہوئی ہے. آگے وہ بات بھی آنی ہے نا کہ جی سچا جھوٹے کی زندگی میں، وہ جھوٹا جو ہے وہ سچے کی زندگی میں مر جائے گا. اب وہ یہ بات نہیں انہوں نے مانی، ان کا اس چیز کو جو انہوں نے ایک شرط رکھی تھی اس کو یہ کہہ کے انکار کر دیا. اور پھر اسی طرح پھر دوبارہ بھی کہا، لیکن کوئی اور ایک کیا. پھر آخر انہوں نے ایک تحریر اور لکھی مولانا امرتسری صاحب نے کہ جی میں اس وجہ سے بھی، مطلب وہ تھوڑا سا اس وجہ سے بھی ڈرتے تھے کہ جس طرح مسلمہ کذاب جو تھا اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سچے تھے نا، تو آپ ان کی زندگی میں اس کی فوت ہو گئے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ نعوذ باللہ آپ غلط تھے. تو وہ یہ کہنے لگے کہ انہوں نے ان کو یہ کہا، یہ حوالہ انہوں نے دیا ہے مرزا صاحب کو، مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب نے، کہ جی یہ والا حوالہ دے کے مسلمان کذاب کا کہ بھئی یہ کوئی معیار نہیں ہے، اس میں تو جو جھوٹا ہے وہ زندہ رہتا ہے، سچا بھی مر جاتا ہے، جس طرح نبی کریم کا حوالہ دیا. تو اس کے بعد یہ ہے کہ انہوں نے اس چیز سے مقابلہ یا وہ کرنے سے انکار کر دیا، یہ کہہ کے کہ جی یہ بات ہے. تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی پھر کیونکہ یہ اب میرا اور آپ کا چیلنج ہوا ہی نہیں، نہ آپ نے قبول ہی نہیں کیا، آپ نے کہا اس کے لیے آپ نے جو بھی تھی لاجکس وہ دے کے آپ پیچھے ہٹ گئے. اس کے بعد اگر یہ کہا جائے کہ جی مولانا امرتسری جو ہیں وہ زندہ رہے اور مرزا صاحب فوت ہو گئے، تو نعوذ باللہ کیا کہیں کہ وہ مسلمان کذاب والا ہی کام ہوا، ختم ہو کیونکہ گئی انہوں بات. نے تو چیلنج ہی نہیں قبول کیا. جمیل اپنا فیض شیخ جی جی صاحب، آپ کے منہ سے میرا آپ کا نام جمیل اس لیے نکلتا ہے، فیض و جمیل ملتا جلتا ہے. گزارش یہ ہے کہ یہ جو مرزا صاحب نے ان کو چیلنج کیا تھا نا اعجاز احمدی میں، کہ اگر آپ چاہیں تو میرے بارے میں ایک اشتہار چھاپیں اور لکھیں کہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے وہ سچے کی زندگی میں اللہ کرے مر جائے. آپ چھاپنا چاہیں تو چھاپ دیں. اس کو مولانا ثناء اللہ امرتسری نے کیوں مسترد کیا تھا، اس کا جواب بھی اکٹھا ہی آ جائے گا. جب مرزا صاحب نے خود ضد ہو کے وہ کام کیا جو مولانا ثناء اللہ امرتسری کو کہہ رہے تھے کہ تم یہ کرو، تم یہ اشتہار چھاپو کہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے وہ سچے کی زندگی میں مر جائے، وہ نہ مانے. جب مرزا صاحب نے خود چھاپا تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ میرے نزدیک یہ جہالت ہے کہ جو جھوٹا ہوتا ہے وہ سچے کی زندگی میں مرتا ہے. کبھی سچا جھوٹے کی زندگی میں مرتا ہے، کبھی جھوٹا سچے کی زندگی میں مرتا ہے. یہ تو فیصلہ اس طرح تو فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا نا. لہٰذا میں اس کو جہالت سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ آج آپ میری اور آپ کی اگر لڑائی ہو جائے، آپ مجھے کہیں نا کہ عمر تم میرے بارے میں فیصلہ کر لو کہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے وہ سچے کی زندگی میں مر جائے گا، تو میں کہوں گا نہیں، مجھے یہ قبول نہیں ہے. ہم دونوں میں سے کسی کی بھی موت پہلے آ سکتی ہے. اس کا یہ فیصلہ کرنے کا طریق ہے ہی نہیں، نہ قرآن میں اس کی دلیل ہے نہ حدیث میں دلیل ہے. اس کے برعکس دلیل موجود ہے کہ نبی علیہ السلام سچے تھے، پہلے فوت ہوئے، مسلمان جھوٹا تھا بعد مرا. لہٰذا یہ
मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने इस वजह से मुस्तरद किया था। अब मिर्ज़ा साहब ने छाप दिया, मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने उस इश्तिहार को, उसके अंदर जो तरीका लिखा, तरीके को कबूल नहीं किया। ना वो चैलेंज था कि चैलेंज वो कबूल करते तो उसने लागू होना था। ये मिर्ज़ा साहब ने एक दुआ की है और उसमें बाकायदा उन्होंने लिखा हुआ है कि ये पेशगोई नहीं है किसी वही की बिना पर, ये दुआ है। दुआ के ज़रिए मैंने अल्लाह से फ़ैसला चाहा। उस दुआ के आखिर पर उन्होंने लिखा हुआ है कि मौलवी साहब से इल्तमास है कि इसके नीचे जो चाहें लिख दें, अब फ़ैसला खुदा के हाथ में है। ये मिर्ज़ा साहब की ज़ाती वन वे दुआ है, एक तरफा दुआ है, और उन्होंने साफ लिखा हुआ है कि मैंने अब फ़ैसला खुदा के हाथ में छोड़ दिया, तुम जो चाहो नीचे लिखो, कबूल करो ना करो, हाँ करो ना करो, मैंने अल्लाह से फ़ैसला मांग लिया, इसको अपने पर्चे में छाप दो और जो चाहो इसके नीचे लिख दो। ये है मामला। अब मिर्ज़ा साहब इसके बाद फोत हुए हैं, तो फैसला किसके हक में आया? पता नहीं, मैंने मिर्जा साहब का वो जो आप कह रहे हो तहरीर, वो तो मेरी नज़र से नहीं गुजरी, वो भी मैं देखूंगा। लेकिन जो इन्होंने मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी साहब ने अपनी किताब इल्हामात मिर्जा सफ़ा 102 बारहम, उसमें क्या कहते हैं, चूंकि अपने बारे में कह रहे हैं, चूंकि ये खाकसार ना वाकया में आपकी तरह, यानी मिर्जा साहब की तरह, आपकी तरह नबी या रसूल या इब्नुल्लाह या इल्हामी है, इसलिए ऐसे मुकाबले की जुरात नहीं कर सकता। जुरात मतलब ये अल्फाज हैं कि ये तो तंज किया ना, ये तो टांट किया ना मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने कि ये आप जैसा मैं नहीं कि मैं इतनी जुरत करूं। हकीकत ये है कि ये एक ताना है जहालत का कि आप मुलहम होने का दावेदार हैं और जहालत खिला रहे हैं। कहते हैं कि आओ मेरे साथ फैसला करो, जो झूठा है वो सच्चे की जिंदगी में मरे। ये जहालत है। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं आप जैसा मुलहिम नहीं हूं। मैं तो ये समझता हूं कि कभी झूठा सच्चे की जिंदगी में मर जाता है, कभी सच्चा भी झूठे की जिंदगी में मर जाता है। नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि जब मिर्जा साहब ने इसको कबूल कर लिया चैलेंज को, तो उसके बाद फिर मौलाना साहब ने जवाब दिया, जी मैंने आपको मुबाहला के लिए नहीं बुलाया, मैंने तो कसम खाने पर आमादगी की है, मगर आप अगर इसको मुबाहला कहते हैं तो मुबाहला इसको कहते हैं जो फ्रीकैन मुकाबला पर कस्में खाएं, मैंने हलफ उठाना है कि मुबाहला नहीं का। ठीक है जी। और कसम है, मुबाहला कसम और है और मुबाहला और है। हलफ और कसम तो हमेशा हर रोज अदालतों में होती है, मगर मुबाहला तो इसको कोई नहीं कहता। ये भी उन्होंने पता नहीं क्या हदीस उनकी किताब है उसमें लिखा उन्होंने। मुझे ये ज़बान नहीं यानी पता है। जो जवाब दिया मिर्जा साहब ने, वो कबूल किया, उसको भी इनकार कर दिया। मैं बताता हूँ क्या इनकार किया। लुकमे मेरे रह गए 2, मुझे रोटी खा लेने। आपने रोटी के दौरान भी गुफ्तगू जारी कि मैं 2 लुकमे रह गए। मैं अभी आपको निकाल के दिखाता हूँ ये तहरीर। जिस बात से इनकार किया कि आप इसको मुबाहले का नाम देते हैं, वो मैं बात आपको पूरी सुनाता हूँ। 2 मिनट से दे दें। वड़ाय साहब ने वक्फा दे दो, काफ़ी पी लेंगे। वड़ाय साहब बोलो। मैं चाहता था तबलीग वास्ते रोटी जी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखती, तबलीग ज़्यादा ज़रूरी है। जड़ा ना की आंदे ने स्पून ना खान देंगे, लेकिन तबलीग तुहानू पता कितनी इंपॉर्टेंट है, वो वास्ते रोटी तो नहीं इंपॉर्टेंट। रोटी तो छड़ दिओ, जड़ा रद्दे कादियानियत है ना, वो मिशन है, और उस मिशन वास्ते कोई रूल रेगुलेशन नहीं होंदा, और खान पीन भी नहीं। वो वास्ते बिल्कुल छुरियां चाकू हर वक्त तेज करके बैठे रहो, और कोई चाकू तो मेरे कोल पे ने, सिर्फ मैं ग्राह लाण लगा। दीनी ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ कोई लिमिटेशन नहीं लानियां, कोई इखलाकी नहीं लानियां, कोई किसी किस्म, बस गैर इखलाकी गैर दीनी हो के रद्दे कादियानियत के पीछे पै जाओ और कला कमा कर दो। आमर साहब, हाँ जी, होर गल ना छेड़ दिया जे, जी गल भी होंदी वही करिया जे। नहीं होर नहीं छेड़दा, रलदी मिलदी गल। ਇਹ ਨਾ ਇੱਕ ਬਰਾੜ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਨਾਦਰੋਏ ਬਰਾੜ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮਸੂਰ ਕੇ ਮਨਸੂਰ ਕੀ ਉਹ ਨਾਂ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ
ਮੌਲਵੀ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਗੋਈ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਪੀਰ ਮੇਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਨਾ ਪਿਆ ਮੁਆਲਾ, ਤੇ ਪੀਰ ਮੇਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਮੁਆਵਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਤਫਸੀਲਾਂ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ ਕੰਮ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੇ ਹੁਣ। ਜੇ ਵਡੈਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਾ ਖਾ ਤੇ ਡੜਿਆ ਰੋ ਇੱਥੇ। ਕਿੱਡੇ ਜ਼ਾਲਮ ਮਿਰਜ਼ਾ ਲੋਕ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੰਦਰ ਤੇ ਖੰਜ਼ੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੌਲਵੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਬੰਦਰ ਖੰਜ਼ੀਰ। ਯਾਰ ਨਵੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਖੋਲ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਉੱਤੇ ਯਾਰ। ਓਹੋ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤਾ ਕੱਲ ਰਾਤ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿੱਧਰ? ਨਹੀਂ ਆਮਦ ਭਾਈ, ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤਾ ਕੱਲ ਰਾਤ ਜਿਸ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਛੱਡੋ ਕਿੱਧਰ ਯਾਰ, ਗਿਆ? ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋ ਕਰਦਾ ਰਵੇ, ਗੱਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਛੱਡੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਠਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਗਲਤ ਕੱਢਣਾ। ਮਾਲਕ ਮਾਲਕ ਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਖੋਲ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹਾਨੇ ਆ। ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? ਫੇਸ਼ਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਨਾ? ਜੀ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਸਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੌਲਾਨਾ ਸਨਾਉਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਉਨ ਦੀ ਵਬਾ ਫੈਲੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਤਾਉਨ ਦੀ ਵਬਾ ਸੀ, ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੁਜਤ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸਨਾਉਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ क्योंकि मुसलमान तो ताउनी मौत को बमुजब हदीस शरीफ एक किस्म की शहादत समझते हैं ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤਾਉਨ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਤਾਉਨ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ कि भाई ये तहरीर तुम्हारी मुझे मंजूर नहीं और ना ही कोई दाना इसको मंजूर कर सकता है। अल हदीस 26 अप्रैल 1997 खाते सफा 5-6। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਰੀਰਾਂ ਯਾਦ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਸਨਾਉਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਕੰਨੀ ਕਿਉਂ ਕਤਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਗੱਲ ਮੁਕਾਣ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਤਾਉਨ ਨਾਲ ਅਗਰ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜ਼ਰਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਖੋਲ ਜ ਲਿਆ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਖੋਲ ਕੇ ਸਾਰਾ। अल्लाह अकबर कबीरा। जनाब पहली गल तो ना शुरू हो जाइए, जितों ये गल शुरू हो जाए। वड़ैच साहब थले आने तो लै लियो, उत्ते तो हुण ना लड़ियो छड़ियो। ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਤੁਰ ਗਏ ਨਾ, ਸਟੇਜ ਹੀਰੋ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਿਆ। अच्छा अच्छा, गल हुई है शुरू इत्थों 17 मार्च 1907 वाले दिन। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਹਾਨਾ ਲਕਮ ਚ ਕੀ ਅਖਬਾਰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਖਬਰ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀ ਛਪੀ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਸਾਲਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਾਦੀਅਨ ਕੇ ਆਰੀਆ व ਸਨਾਉਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖਬਾਰ ਤੇ ਹੈਡਿੰਗ ਲਾਤੀ। मिर्ज़ा साहब ने रसाला छापिया सी कादियन के आरिया और हम, ये पता जे पढ़िया जे रसाला? नहीं मैं नहीं पढ़िया, मेरी नज़र से नहीं गुजरिया। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਯਕੂਬ ਅਰਫਾਨੀ ਨੇ 17 ਮਾਰਚ 1907 ਨੂੰ ਇਹ ਲਕਮ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਬਰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਓਰੀਜਨਲ ਸਕੈਨ ਮੈਂ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲ ਲਗਾਵਾਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਯਕੂਬ ਅਰਫਾਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ कादियान के आरिया व सनाउल अमृतसरी, इस रसाला की एक जिल्द मौलवी सनाउल अमृतसरी को भी भेजी गई है। कादियान के आरियों
نے हज़रत मिर्ज़ा साहब के जो निशानात देखकर तकज़ीब की और कर रहे हैं, इस रसाले में उनसे मुबाहला कर दिया है। इसमें आर्यों को ऐलान किया है कि अगर उन्होंने निशानात नहीं देखे तो कसम खा जावें कि ये निशानात सदाकत इस्लाम के हमने नहीं देखे। अब सनाउल्लाह को भी चाहिए कि अपने दोस्तों कादियान के आरियों को इस कसम के लिए आमादा करे और उनके पांव पड़े, वरना उनकी कसम की गुरेज से हज़रत मिर्ज़ा साहब की सदाकत पर मोहर लग जाएगी। और सनाउल्लाह ने भी ए हुण गल गौर नाल सुनिया जे, जिन मैं निशान ला के रखे ना सुरख रंग दा, और सनाउल्लाह ने भी कोई निशान सदाकत बतौर खारिक आदत नहीं देखा है, तो वो भी कसम खा कर परख ले, ताकि मालूम हो कि खुदा ताला किसकी हमायत करता और किसकी कसम को सच्चा करता है। ऐसी पहला चैलेंज जेड़ा 17 मार्च 1907 ਦੇ अल हकम अखबार छपिया ਸੀ, ਇਹਦਾ जवाब दिता है मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने। वो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦੇਣਾ ਕੀ जवाब दिता मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने। ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਮੌਲਵੀ ਸਨਾਉल्लाह अमृतसरी ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਫਾਜ਼ਲ ਅਬੁਲ ਮੌਲਾਨਾ ਸਨਾਉल्लाह अमृतसरी ਆਪਣੇ ਅਖਬਾਰ ਦੀ 21 ਮਾਰਚ 17 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 29 मार्च में हज़रत अक़दस की ताज़ा तसनीफ़ कादियान के आर्य और हम का जिक्र करते हुए और आर्यों की कसम खाने के मतलब अपनी पुरानी आदत के मुताबिक बेजा नुक्ता चीनी करते हुए अखीर में मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी लिखते हैं, ए उन्हें अपने अखबार छापिया सी जेड़ा मैं हुण पढ़ के सुनान लगा। ए मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने अपने अखबार दी छापिया सी, उहदा स्कैन मेरे को मौजूद है, तुसीं हत्थों ही पढ़ लो। कहते ने मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी, हाँ अलबत्ता हम अपने नफ्स के ज़िम्मेदार हैं, सो हम तुम्हारे कृष्ण की किज़ब बयानी पर कसम खाने को तैयार हैं। आओ जिस जगह चाहो हमसे कसम दिलवा लो, मगर पहले ये शाया कर दो कि इस कसम का नतीजा क्या होगा। हम हल्फिया कह देंगे कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को हम खुदा की तरफ से मामूर नहीं जानते, बल्कि आला दर्जे का झूठा मक्कार और फबी है, और इसकी कोई पेशगोई खुदाई इल्हाम से नहीं है। मिर्ज़ाइयों, सच्चे हो तो आओ और अपने गुरु को साथ लाओ। वही मैदान ईदगाह अमृतसर तैयार है जहां तुम एक ज़माने में सूफ़ी अब्दुल हक गज़नवी से मुबाहला करके, यार इन्हूं म्यूट कर दे थले बिलाल साहब, गालां कड्ढन लगे उम्मुल मोमिनीन आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। जहां तुम एक ज़माना में सूफ़ी अब्दुल हक गज़नवी से मुबाहला करके आसमानी ज़िल्लत उठा चुके हो, अमृतसर में नहीं तो बटाले में आओ, सब के सामने कार्रवाई होगी, मगर इसके नतीजा की तफसील और तशरीह कृष्ण जी से पहले कराओ और उन्हें हमारे सामने लाओ, जिसने हमें रिसाला अंजाम आतम में मुबाहला के लिए दावत दी हुई है, क्योंकि जब तक पैगंबर जी से फैसला ना हो सब उम्मत के लिए काफ़ी नहीं हो सकता। ए मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने जवाब दिता है उस तहरीर का जिहड़ी तुहानूं पढ़ के सुनाई है। जदों मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने यह जवाब दिता है तो इन्हों ने की आख्या, मिर्ज़ा साहब के पैरोकारा ने मुबाले के वास्ते मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी का चैलेंज मंजूर किया गया। एदा जवाब मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने दिता है कि जालमो, मैं मुबाले के वास्ते किहड़ा चैलेंज तुहानूं दिता है जिहड़ा तुसीं मंजूर पे करदे हो। तुसां मैनूं ए उतले सफ़े ते आख्या कसम चुक, ते मैं आख्या मैं कसम चुकन नूं तैयार हाँ। तुसीं इत्थे इश्तिहार पे लांदे हो कि मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी का चैलेंज मंजूर हो गया मुबाले का। मैंने मुबाहले का नहीं कहा, मैंने कसम खाने का कहा है। गल समझ गए हो?
ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬਹਾਨਾ ਹੁਣ ਕੱਢ ਕੇ हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू सारे दोस्तों ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਮਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, ਤਹਕੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਆਪ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਹਰੀਰਾਂ 2-2 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਹੈ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਵਾਬ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਮਜ਼ਮੂਨ। ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਕੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਤੇ ਛੋਟੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਹਫੀਜ਼ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਸੁਣਦਾ ਗੱਲ ਦਾ ਜਬ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤਬ ਤੱਕ ਗੱਲ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਿਛਾ ਕੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋग ਨੇ ਜਾਂ आलम दीन ने खास तौर ते अहल हदीस वाले या ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਬਾਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਚ ਅਬੁਲ ਵਫਾ ਮੌਲਾਨਾ ਸਲਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਤਵਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਕਿਆ ਮੌਲਾਨਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਤਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਹ ਬਾਦਰੀ ਉਮਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਸਹੀ ਇਲਮ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੌਲਾਨਾ ਸਨਾਉਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਗੱਲ अमन अली साहब वो तो ये कहते हैं कि जब जो भी मसला हुआ उसके एंड में मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी के घर पे पता नहीं क्या कोई हमला हुआ, उनका बेटा भी कत्ल कर दिया गया। इस किस्म का वाकया भी हुआ था। वो भी बात बयान करते हैं। वो अब जो एमजी लोग हैं या आप कह लें दूसरे लोग हैं, वो तो ये इसको इस चीज से इबारत करते हैं कि देख लो अल्लाह ताला का। वो मैं बताता हूँ, उसका जवाब देता हूँ वो बाद में, प्लीज उसको पीछे रखें। वो तो 13 अगस्त 1947 को वाकया हुआ ना उनके बेटे की शहादत का। 13 अगस्त 1947 पाकिस्तान बनने से एक रोज पहले दोपहर के 11 बजे मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी के घर में ग्रेनेड फेंका गया। उस जमाने में दस्ती बम कहते थे, बाद में इसका नाम ग्रेनेड रख लिया। वो गली में से जुलूस गुजर रहा था, सेन में इनका बेटा था, वो शहीद हो गया। इकलौता बेटा था लेकिन शादीशुदा था, उसके 4 बेटे थे आगे से। वो चारों बेटे लेकर मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी 14 अगस्त की रात को यहाँ पाकिस्तान आ गए। वो छोड़ दे, बाद में करते बात। ये मैंने आपको बताया था कि ये है मिर्ज़ा साहब ने जो इश्तिहार छापा है मौलवी सनाउल्लाह साहब के साथ आखिरी फैसला 1, 2, 3 कालम में। वहाँ पर आखिरी फैसला इश्तिहार आपके मजमूआ इश्तिहारात में भी पड़ा हुआ है, आप खोल के वहाँ से ये देख सकते हैं। ये वहाँ से मैंने स्कैन लिया हुआ है। अब देखिए मिर्ज़ा साहब ने क्या लिखा है, जो मैंने आपको कहा था कि मिर्ज़ा साहब ने ये बात लिखी, आपने कहा मेरे इल्म में नहीं है। ये सारी तहरीर लिख के ना कि ये हो जाए या अल्लाह ये हो जाए, ऐ मेरे प्यारे मालिक तो ऐसा ही कर, आमीन सुम्मा आमीन, रब्बा नफ्तह बैनना व बैन कौमिना बिल हक व अंत खैरुल फातिहीन आमीन लिख कर बिल आखिर मौलवी साहब से इल्तमास है कि वो मेरे तमाम मजमून को अपने पर्चे में छाप दें और जो चाहें इसके नीचे लिख दें। अब फैसला खुदा के हाथ में है। ये दुआ सारी मिर्ज़ा साहब ने लिख के ये कहा कि मौलवी साहब से इल्तमास है कि वो मेरे इस तमाम मजमून को अपने पर्चे हदीस अमृतसर में छाप दें और जो चाहें इसके नीचे लिख दें। अब फैसला खुदा के हाथ में है। अब जब मिर्ज़ा साहब ने ये फैसला खुदा के हाथ में पकड़ा दिया, मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने इस सारे मजमून को कहा कि शैतान की आंत से लंबी तहरीर मिर्ज़ा साहब ने लिखी है। ये जो है ना आखिरी फैसला इश्तिहार, ये 3 कालमों का, इसके बारे में मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने कहा कि शैतान दी अंदर नालों वड्डी तहरीर है। ਇਹਦੇ 'ਚ कई झूठ ਤੇ कई वल ਤੇ कई फरेब मिर्ज़ा साहब ने दिते थे। वो मैं दिखा देता हूँ आपको। उस पर उन्होंने एतराज़ किया और कहा कि ये आपका तरीका सही नहीं है। यहाँ से शुरू होता है उनका एतराज़।
हाँ, ये अहल हदीस अमृतसर अखबार है, इसमें उन्होंने इस पर क्रिटिसाइज़ किया है और आखिर में कहा है कि मैं डरता नहीं हूँ, मैं साल हर साल से आपके साथ मुबाइले से कैसे डर सकता हूँ। ये तो नहीं कि आपको रास्त गोई का सबक देता हूँ, मोमन हर मामले में मुझे किज़ब बयानी ना किया करे, मैं आपके मकायद समझने में फजल ताला मुजतहिद का दर्जा रखता हूँ। बस मैंने जो कहा मेरी तरफ सबत कीजिए, दरोगोई से काम ना लीजिए। मैंने हलफ उठाना कहा है, मुबाइला नहीं कहा। ना मैंने आपको दावत दी है बल्कि आपकी दावत को मंजूर किया है। ये गलत लिखा कि सही लिखा मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने? इंसाफ से बात करें, दावत किसने दी भाई? फीस शेख साहब, आखिर मरना है क्यामत के दिन। जी जी ये वो बातें मेरे पेश पास भी था, मैंने पढ़ा वो जिसमें इन्होंने कहा मिर्जाइयो सच्चे हो तो आओ, हाँ तो इन्हें हमारे सामने लाओ जिसने हमें अंजाम आथम में मुबाला की दावत दी हुई है। इसका मतलब तो क्या हुआ कि सच्चे हो तो आओ। मैंने अगर आपको एक चैलेंज किया हुआ है, आप उसके जवाब में मुझे कहें ठीक है सच्चा है तो आ जाओ। फिर किस बात का चैलेंज किया आपने मुझे? कसम अंजाम खाने का? आथम में मुबाहला नहीं की नहीं नहीं दावत। नहीं 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 नहीं, वो मोबाइल की बात और है। हाँ, आपने मुझे 17 मार्च, ये जो अभी मैंने आपको तहरीर मोहतरम पढ़ के सुनाई है, मैं यहाँ पर आपको ये आपने 29 मार्च की पढ़ के बता रहा हूँ। नहीं, वो छोड़ें, ये क्या 17 मार्च चैलेंज? को 29 मार्च बाद में आती है फीस शेख साहब, जी। ये चैलेंज किया सबसे पहले 17 मार्च का, ये अल हकम अखबार है, 17 मार्च 1907 अल हकम अखबार है। कहें तो मैं इसका ऊपर वाला ये भी दिखा दूँ, तारीख भी आपको दिखा देता हूँ, ये इसको तारीख को भी पढ़ लें। यार मैं झूठ नहीं बोलता फीस शेख साहब, कसम चुका लो। मैं कह रहा हूँ कि आप झूठ बोल रहे हैं। मैंने नहीं, आप तबलीग को नहीं, तबलीग को मैं हेरा फेरी करके किसी को, नहीं, ये मैं तारीख क्या लिखी हुई है? मैं एक वो मिनट, देख रहा हूँ ना, आप 17 मार्च कह रहे हैं, मेरे पास जो तहरीर है वो 29 मार्च वो की है। पढ़ते हैं, 29 की भी पढ़ते हैं। ये क्या तारीख लिखी हुई है? हाँ, 17 मार्च 1907 को सबसे पहले इन्होंने यहाँ पर चैलेंज किया है, यहाँ पर जहाँ उन्होंने लिखा कादियान के आर्या सनाउल्लाह, ये वो चैलेंज है। सनाउल्लाह ने भी कोई निशान नहीं तो वो भी कसम खा ले ताकि मालूम हो कि खुदा ताला किसके साथ है। ये इस चैलेंज का जवाब मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने दिया और ये कहा जो आप कह रहे हैं कि मिर्जाइयों सच्चे हो तो आओ और अपने गुरु को साथ लाओ, वही मैदान ईदगाह अमृतसर तैयार है जहां तुम एक ज़माने में सूफ़ी अब्दुल हक गज़नवी से मुबाला करके आसमानी ज़िल्लत उठा चुके हो। अमृतसर में नहीं तो बटाला में आओ, सबके सामने कार्रवाई होगी, के नतीजे में तफसील और तशरीह कृष्ण जी से पहले करा दो और उन्हें हमारे सामने लाओ जिसने हमें साला अंजाम आथम में मुबाहला के लिए दावत दी हुई है, क्योंकि जब तक पैगम्बर जी से फैसला ना हो सब उम्मत के लिए काफ़ी नहीं हो सकता। इसमें उन्होंने कसम का चैलेंज उनका कबूल कर लिया कि मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कहाँ? जहाँ आप चाहते हो वहाँ कसम खा लेता हूँ। बटाला में, हाँ जी, मैं वो इस खुदा पर कसम खाने को तैयार है। इस मुबाले के वास्ते हज़रत साहब को बुलाते हैं, मिर्ज़ा साहब से पूछते हैं कि इस माले का नतीजा क्या होगा। इस मुबाले के वास्ते ये जगह तजवीज़ करते हैं। मुबाला लगा दिया इन्होंने, मुबाला तो है ही नहीं। उन्होंने कहा कि आपने मुझे कहा है कि आप कादियान के आरियों की तरह कसम खाएं, तो उन्होंने कहा मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ। अब जब वो कसम खाने के लिए तैयार हुए तो इन्होंने झूठ बोल के ये कह दिया कि वो तो मुबाला होने लगा है जी, मुबाला होने लगा है, चैलेंज कबूल हो गया। उन्होंने कहा मुबाला कौन सा, मैंने खानी है कसम, आपने बताना है कि मेरी इस कसम का नतीजा क्या होगा, बस इतनी सी बात है। बहरहाल अब आगे बात आपको बताते हैं कि अब इसी अखबार में वो क्या कहते हैं, जब उन्होंने ये गलत बयानी की और कहा कि मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी का मुबाले का चैलेंज कबूल मंजूर कर लिया गया है, इसमें उन्होंने ये हेरा फेरी किया और कहा क्या है, मैं आपको सुनाता हूँ। हाँ, कहते हैं कि हाँ, और को कौन है, ये फाइल बड़ी करप्टेड है। इस मजमून में से बेजा तानु तशनी छोड़कर जिसके जवाब की ज़रूरत नहीं, असल मतलब की बात सिर्फ ये है कि मौलवी सनाउल्लाह हज़रत मसीह मऊद की के मज़हब पर ऐसा यकीन और ईमान रखते हैं कि वो उस पर खुदाए ताला की कसम खाने को तैयार हैं। और इस मुबाले के वास्ते, अब इसको नाम फिर मुबाला दे, इस मुबाले के वास्ते हज़रत साहब को बुलाते हैं। हज़रत मिर्ज़ा साहब से पूछते हैं कि इस मुबाले का नतीजा क्या होगा, और इस मुबाले के वास्ते
अमृतसर या बटाला में तरफैन का जमा होना तजवीज़ करते हैं। इस मजमून के जवाब में सुनिए ज़रा जवाब जो देता है ना, इस मजमून के जवाब में मैं मौलवी सनाउल्लाह साहब को जवाब देता हूँ कि हज़रत मिर्ज़ा साहब ने उनके इस चैलेंज को मंजूर कर लिया है। केड़े चैलेंज ने मंजूर कर लिया? चैलेंज तो तुसां दिता है कसम दा। वो बेशक कसम खाकर कहें कि ये शख्स अपने दावे में झूठा है और बेशक ये बात कहें कि अगर मैं इस बात में झूठा हूँ तो लानत। कसम वाली बात जो है ये तो उन्होंने की थी मौलाना सनाउल्लाह साहब ने। उन्होंने कहा था मैंने आपको मुबाहला के लिए नहीं बुलाया, मैंने हाँ। तो कसम खाने पर आमादी सुने, की। वो भी मैं दिखाता हूँ। यही जब इन्होंने ये कहा ना मुबाले के वास्ते मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी का चैलेंज मंजूर किया गया, इसका जवाब उन्होंने देकर कहा कि मैंने आपको मुबाहले का नहीं कहा था, मैंने आपको कसम खाने का कहा था। कसम का चैलेंज आपने दिया, मैंने नहीं आपको दिया। आपने मुझे मुबाहले का चैलेंज दिया था 1896 में, आज से 11 साल पहले। वो मैंने कबूल कर लिया था, फिर आप बोले नहीं उसके बाद। अब आपने मुझे कसम का कहा, मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ। ये तो मुबाहला नहीं है, ये तो कसम है। इसका उन्होंने जवाब दिया था। अच्छा सुन लें, ये कहते हैं कि मुबाहले का चैलेंज मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी ने कबूल कर लिया है। और आगे सुने, हज़रत अक़दस ने फिर भी उस पर रहम करके फरमाया है कि ये मुबाहला चंद रोज़ के बाद हो, जबकि हमारी किताब हकीकतुल वही छप कर शाया हो जाए, और उम्मीद है कि 20-25 रोज़ तक इंशाअल्लाह वो किताब शाया हो जाएगी। इस किताब में हर किस्म के दलाइल सिलसिला हक्का के सबूत में खलासतन बयान किए गए हैं और 200 से ज़्यादा इसमें निशानात भी लिखे गए हैं। ये किताब मौलवी सनाउल्लाह को भेज दी जाएगी। ए पढ़ लो चंगी तरह, ये किताब मौलवी सनाउल्लाह को भेज दी जाएगी और वो उसको अव्वल से आखिर तक बगौर पढ़ ले। इस किताब के साथ एक इश्तिहार भी हमारी तरफ से शाया होगा जिसमें हम ये जाहिर कर देंगे कि हमने मौलवी चैलेंज मुबाहला को मंजूर कर लिया है और हम अव्वल कसम खाते हैं कि वो तमाम इल्हामात जो इस किताब में हमने दर्ज किए वो खुदा की तरफ से हैं। अगर ये हमारा इफ्तरा है तो लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। ऐसे ही मौलवी सनाउल्लाह भी इस इश्तिहार और किताब के पढ़ने के बाद बजरिया एक छपे इश्तिहार के कसम के साथ ये लिख दें कि मैंने इस किताब को अव्वल से आखिर तक बगौर पढ़ लिया है, इसमें जो इल्हामात हैं वो खुदा की तरफ से नहीं है और मिर्ज़ा गुलाम अहमद का अपना इफ्तरा है। और अगर मैं ऐसा कहने में झूठा हूँ तो लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। और इसके साथ अपने वास्ते जो कुछ अजाब वो खुदा से मांगना चाहें मांग लें। इन इश्तिहारात के शाया हो जाने के बाद अल्लाह ताला खुद ही फैसला कर देगा। ये तरीका मोबाइल का बता रहे हैं। समझ आ गई है कि मुबाहला करेंगे, किताब छपने के बाद किताब छापेंगे, आपको भेजेंगे और फिर उसके साथ इश्तिहार भेज देंगे मोबाइल का। ये सुनना ज़रा बात, इनकी बादहदी ज़रा सुनना, अपनी आंखों से देखना। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने पूछा कि भाई किताब छप गई है, वो किताब किधर है? हाँ, ये वो तहरीर दोहरा रहे हैं। ये अहले हदीस अमृतसर का सफ़ा है। जो इस किताब में हमने दर्ज कर दी है वो खुदा की तरफ से नहीं, और अगर ये हमारा इफ्तरा है तो लानतुल्लाह अलैह नहीं है तो सच्चे अल हकम दा दूजा है 31 मार्च का। ये इकट्ठे स्कैन में रखे, मैं आपको बताता हूँ। हाँ लो जी, सुनियो जी किताब दे बारे। ये कौन सी अखबार है? 4 अप्रैल 1907 की। ये अखबार बदर है 4 अप्रैल 1907 का। इसमें वो पूरी बात बयान करते हैं और कहते हैं कि हमने ये कहा है कि भाई ये किताब छपने के बाद मुबाहला होगा। ये बात आपके जहन में है ना? किताब छपेगी, आपको भेज दी जाएगी और फिर मुबाहला बाद में होगा। आगे देखना। इसके बाद मिर्ज़ा साहब ने ये इश्तिहार छाप दिया 15 अप्रैल को। अब जब 15 अप्रैल को इश्तिहार छाप दिया तो मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने ये जवाब दे दिया कि ये क्या है। सारे तनकीद करके वो कहते हैं मुख्तसर
یہ 26 اپریل کا اخبار ہے اہل حدیث امرتسر. اہل حدیث امرتسر دیکھ لیں اور 26 اپریل کی ڈیٹ دیکھ لیں. کہتے ہیں مختصر یہ کہ میں تمہاری درخواست کے مطابق حلف اٹھانے کو تیار ہوں اگر تم اس حلف کے نتیجے سے مجھے اطلاع دو، اور یہ تحریر تمہاری مجھے منظور نہیں، نہ کوئی دانہ اس کو منظور کر سکتا ہے. یعنی یہ جو تم نے اشتہار چھاپا ہے یہ میرے اور تمہارے درمیان کوئی طے نہیں ہوا تھا کہ اب آپ نے یہ اشتہار چھاپنا ہے، میں نے بھی جواب میں اشتہار، آپ کو میں نے قسم کھانے کا وعدہ کیا ہوا ہے، آپ کہتے ہیں کہ نہیں اس طرح نہیں اس طرح کر لو. مرزائیو تمہارا گرو اور تم کہا کرتے ہو کہ مرزا صاحب منہاج ثبوت پر آئے، کسی نبی نے بھی اپنے مخالفوں کو اس طرح سے فیصلہ کرنے کے لیے بلایا نہیں، بتاؤ تو انعام لو، ورنہ منہاج نبوت کا نام لیتے ہو، شرم کرو، شیم شیم شیم. امید کرتا ہوں مرزا صاحب اپنے ماتحتوں کو حکم دے کہ اپنے اخباروں میں میرا یہ جواب بھی نقل کر دیں گے، کسی نے نہیں نقل کیا. امن عزیز صاحب، میں یہاں پہ یہ سوال پوچھوں گا کہ اشتہار چھاپنے میں ان کو کیا مسئلہ کیا تھا؟ انہوں نے تو ایک جھوٹے کو جھوٹا ہی ثابت کرنا تھا نا. کون سا چاہے وہ اشتہار؟ آپ منہ سے کہہ دیں، آپ لکھ کے کہہ دیں، وہی لفظ جو آپ نے میرے منہ پہ مجھے کہنے ہیں تو وہی آپ لکھ دیں گے، تو اس میں کیا ہے؟ کوئی آپ سے غلط سٹیٹمنٹ تو نہیں لکھوائی جا رہی تھی نا، نعوذ باللہ کہ کوئی آپ مشرکانہ لفظ استعمال کرنے ہیں اس میں. لکھتے تھے بس. کیا لکھ دیتے؟ کیا لکھ کر دیتے؟ آپ بتائیں کیا لکھنا چاہیے تھا مولانا ثناء اللہ امرتسری کو؟ نہیں، وہ جو مطالبہ ہو رہا تھا کہ بھی تم میرے یہ دعوے ہیں، تم لکھو کہ اگر یہ شخص اپنے دعووں میں جھوٹا ہے تو اس کے اوپر جو بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب یا مصیبت یا جو بھی ہے، یہ مر جائے یا جو بھی واٹ ایور. وہ لکھنے میں کیا رہا تھا جب وہ ان کو سمجھتے ہی جھوٹا تھے؟ تو میں اگر آپ کو کہوں میں نے دعویٰ نبوت کیا ہے، میں کہوں امن عزیز صاحب لکھیں کہ اگر یہ شخص حفیظ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے اور میں اس کو جھوٹا سمجھتا ہوں تو یہ لعنتی موت مرے اللہ کا عذاب، اس میں آپ کو کیا اجلت ہونی چاہیے لکھنے میں؟ آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ پوری بات کریں نا، پوری بات نہیں نا آپ بیان کر رہے. نہیں، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ کیوں وہ نہیں لکھ رہے تھے اشتہار جس کا مطالبہ کیا جا رہا تھا، میں یہ جاننا چاہتا ہوں. اشتہار کس کا مطالبہ کر رہے تھے؟ آپ پوری بات بیان کریں. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ حضرت صاحب نے ان سے مطالبہ کیا تھا کہ خالی اس طرح زبانی میرے سے نہ وہ تم مطلب بات کرو، تم ایک کام کرو، یہ میرے دعوے ہیں، ان کے اوپر تم میرے دعوے لکھو کہ یہ مرزا غلام احمد یہ دعوے کلیم کرتا ہے اور میں اس کو ان دعووں میں جھوٹا سمجھتا ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ سے یعنی دعا کرتا ہوں کہ جو یہ مطلب اگر یہ جھوٹا ہے اپنے دعووں میں تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب مصیبت جو بھی ہے وہ نازل ہو. یہ کون سا ایسا بڑا مطالبہ تھا جس کو وہ اشتہار چھاپنے پہ وہ مطلب ان کے لیے کوئی مشکل ہو رہی تھی کہ نہیں میں نے نہیں یہ اشتہار چھاپنا؟ وجہ اچھا بات یہ ہے کہ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ آپ اب 3 دفعہ میں نے آپ سے پوچھا، میں آپ کو خود اب بتانے پہ مجبور ہوا، آپ کو نہیں پتا وہ کیا مطالبہ کر رہے تھے. وہ یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ آپ یہ اشتہار چھاپیں کہ میں مرزا صاحب کو جھوٹا جانتا ہوں، اب اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے وہ سچے کی زندگی میں مر جائے. یہ مطالبہ وہ کر رہے تھے. مولانا ثناء اللہ امرتسری آپ کو کھانا کھانے سے پہلے یہی بات میں آپ کو بتا رہا تھا کہ انہوں نے ان کو مولانا صاحب نے مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب نے حضرت صاحب کو لکھا کہ بھئی میں تیرے وانگر تے دعوے نہیں کیتے ہوئے کہ میں یہ بھی ہوں، میں وہ بھی ہوں، لہذا میں نہیں جرت کر سکتا کہ میں اس قسم کا اشتہار چھاپوں کہ مرزا صاحب کے یہ دعوے ہیں تو ان کے اوپر ہو، کیونکہ میں نے تو نہیں کلیم کرتا ہوں. یہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ سم ہاؤ ان کو یہ خدشہ تھا، پتہ نہیں ہے بندہ کسی دعوے میں سچائی نہ آئے تو میرے تو پٹھائی نہ پہ جائے. مطلب آپ میرا کہنا اس طرح کی بات نہیں ہے، اس طرح کی بات نہیں ہے، اس طرح کی بات نہیں ہے. تبھی تو یہ مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے. سر آپ کو نہیں پتا کہ 1896 میں جب مولانا ثناء اللہ امرتسری ابھی فارغ التحصیل ہو کر آئے ہی تھے تو مولانا ثناء اللہ امرتسری نے مرزا صاحب کی تحریر پڑھی تھی انجام آتم، 1896 میں لکھی گئی. اس میں مولانا ثناء اللہ امرتسری کا نمبر 11 پہ موبائل کے لیے نام لکھا ہوا ہے کہ میں اس بندے سے موبائلہ کرنے کے لیے تیار ہوں. ان میں مولانا ثناء اللہ امرتسری کا بھی نام ہے. مولانا ثناء اللہ امرتسری نے 1896 میں ہی ان کا مباحلے کا چیلنج قبول کر لیا تھا کہ میں آپ کے ساتھ مباحلہ کرنے کے لیے تیار ہوں، صرف اتنا ہے مباحلے سے پہلے آپ میرے ساتھ مناظرہ کریں، اس کے بعد مباحلہ کر لیں گے. مرزا صاحب نے جواب ہی نہیں دیا اس بات کا. آگے بڑھیں. اب یہ جو 1907 والی بات ہے نا، اس میں ہیرا پھیری سے وہ کام لے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ چھاپیں کہ جو ہم میں سے پہلے مر جائے گا وہ جھوٹا ثابت ہو جائے گا. آپ یہ لکھو، یہ اشتہار چھاپو کہ جو سچا ہے وہ زندہ رہے، جو جھوٹا ہے وہ مر جائے، اور جو مر جائے گا پہلے وہ جھوٹا ثابت ہو جائے گا. یار یہ کون صاحب ہے؟ مائک میوٹ کیا، پھر مائک کھول لیتے ہیں. کیا بات کرنا چاہتے ہیں آپ محترم؟
माइक साहब क्या बात करना चाहते हैं आप? अहमद भाई ये वही बिल्कुल भाई नहीं जिन्होंने आपसे कुछ दिन पहले बात भी की थी, अहमद ही। पता नहीं मुझे। अच्छा मैं अहमद नजीर साहब, ये जो मैं पढ़ता हूँ आप उसमें मुझे लगता है कि कोई कमी पेशी है जो आप पढ़ रहे हैं तो उनका, लेकिन इसमें ये कहते हैं कि जी अगर मौलवी सनाउल्लाह साहब ऐसे चैलेंज के लिए मुस्तैद हों तो सिर्फ तहरीरी खत काफी ना होगा, बल्कि इनको चाहिए कि एक छपा हुआ इश्तिहार इसका मजमून शाया करें कि इस शख्स, आप आगे क्या कह रहे हैं, कि इस शख्स को इसकी जगह मेरा नाम बतसरी यानी मिर्जा गुलाम अहमद मैं कजाब दजाल को मैं कजाब दजाल और काफर समझता हूँ। अब ये जो तहरीर आप पढ़ रहे हैं हफीज शेख साहब, इसीलिए मैं कहता हूं कि आपके साथ ये धोखेबाज धोखा कर रहे हैं। ये तहरीर 1902 की है, एजाज अहमदी की तहरीर है जो आप पढ़ रहे हैं। जो मैं आपके सामने खोल के बैठा हूं ये 1907 का वाकया है। 5 साल पुरानी तहरीर आप पढ़ रहे हैं। देखो नीचे वाला है एजाज अहमदी का, जाजे अहमदी लिखा हुआ है, जिल्द 19 सफा 123। जी हाँ जी हाँ, ये जिल्द 19 सफा 123 जाजे अहमदी, ये 1902 में छपी है जब मुद्द में मनाजरा हुआ है ना। 1902 में चलें, आपकी बात ठीक है। तो 1902 में भी इन दोनों के दरमियान कोई मसला चल रहा था इस किस्म का? मसला तो 1896 से शुरू हो गया ना, तो वो चलता रहा। कभी चल जाता था, कभी रुक जाता था। कभी वो कहते थे कि आज जो मुबाला करना है, मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी कहते थे मैं आ गया, करो मुबाला करना है, वो कहते थे नहीं करना। जब मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी को कहा कादियान आओ पेशगोई की पड़ताल के लिए, मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी कादियान गए तो मिर्जा साहब ने कहा दौड़ जा तू, कोई पड़ताल पड़तूल नहीं, दफा हो जा, निकल जा तू लाना लेके, कोई तेरी मैं पेशगोई की पड़ताल नहीं करनी, इस तरीके ने करनी है, तू 2 सत्र एतराज कर, मैं 1 घंटा तकरीर उहदे ते करांगा। ये पड़ताल होने लगी है, वहां से भी मामला रह गया। तो ये 1901 का मामला है। फिर ये 1902, हाँ ये एजाज अहमदी के बाद का वाकया है। एजाज अहमदी जो आप तहरीर पढ़ के सुने, इसके बाद मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी कादियान गए 1903 में, जनवरी 1903 में, 3 जनवरी 1903 के दिन। आगे बढ़े, ये जो तहरीर मैंने आपको पढ़ के सुनाई है ये 1907 की है। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी को पहले चैलेंज किया गया कि आप ऐसा करें कि कसम खाएं कि आपने हमारा कोई इल्हाम नहीं देखा। उन्होंने कहा मैं कसम तैयार हूं, आप बता दें नतीजा क्या आएगा। दूसरा ये कि कसम मैं खत में नहीं खानी, मैं बंदे इकट्ठे करो, बटाले आ जाओ या अमृतसर आ जाओ, उसी जगह जहां पहले आपका सूफी अब्दुल्ला गजनवी से मुबाला हुआ है ईदगाह के साथ, छोटी मस्जिद, वहां आ जाओ, मैं कसम खाने के लिए तैयार हूं। इन्होंने कहा लो जी मुबाला होने लगा है, लेकिन पहले हम किताब छापेंगे हकीकतुल वही पढ़ के फिर आपने बताना है कि क्या आप इन सारे इल्हामात को झूठा समझते हैं। फिर आपने अपनी तरफ से उसी तरह का इश्तिहार छापना है जिस तरह का हमने छापना है। भाई इतनी शर्तें इनकी कौन माने। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने कहा मैंने तो मोबाइल का आपको कहा ही नहीं, मोबाइल का आपने 1896 में कहा था, मैंने कबूल कर लिया था। अब तो आपने कसम की बात की है, कसम मैं खाने के लिए तैयार हूँ। कसम अभी मैंने आपको पढ़ के उनकी तहरीर सुनाई, उन्होंने कहा मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ, आओ वहां बटाले आ जाओ, अमृतसर आ जाओ, लाहौर आ जाओ, सियालकोट आ जाओ, जिधर कहते उधर आके कसम खाते हैं। बंदे इकट्ठे करके 100-200 बंदे के सामने कसम खाएंगे कि मैं इस बंदे को झूठा समझता हूँ, इसके सारे इल्हामात को झूठा समझता हूँ और इसकी कोई बात मैंने ज़िंदगी में सच्ची होते हुए नहीं देखी, ये सारी पेशगोइयाँ इसकी झूठी हैं। ये कसम वो खाने के लिए उन्होंने कहा मैं तैयार। अच्छा आगे सुने, मिर्ज़ा साहब ने ये कह के कि हम हकीकतुल वही छापेंगे, उसके बाद मोबाइल का इश्तिहार भी साथ ही शाया कर देंगे। तो मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने कहा कि ये तो मेरी बात ही आपके साथ नहीं है, मैंने तो कसम खानी है, मोबाइल का तो मैंने कहा ही नहीं। फिर हुआ क्या कि मिर्ज़ा साहब ने मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी की इस इनकार को देखकर 15 अप्रैल 1907 को ये इश्तिहार छाप दिया जो मैंने आपको दिखाया है, जिसके आखिर पे उन्होंने लिखा हुआ है कि इस मजमून को अपने पर्चे में छाप दें और इसके नीचे जो चाहें लिख दें, फैसला खुदा के हाथ में है। पढ़ना है मजमून, पढ़ा हुआ है आपने? हाँ नहीं पढ़ा हुआ है मैंने, सारा पढ़ा हुआ है ना? हाँ आप बात करें। 15 अप्रैल 1907 को ये दुआ का इश्तिहार छाप के मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी को कहा कि इसके नीचे जो चाहे लिख दो।
लिख के मामला खुदा के हाथ में भेज के मिर्ज़ा साहब ठंडे ठार होकर सो गए। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने कहा कि ये झूठ और फ्रेब, इसमें भी इतने झूठ बोले हुए हैं, कभी कहते हो मौत आ जाए, कभी कहते हो मौत जैसी कोई मुसीबत आ जाए। तो मेरी और आपकी बात सिर्फ और सिर्फ कसम खाने की थी, मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये आगे से इन्होंने फिर जवाब नहीं दिया मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी का। हुआ ये कि मई की 15 तारीख को हकीकतुल वही छप गई, 15 अप्रैल को इश्तिहार छपा, 15 मई को हकीकतुल वही छप के आ गई। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी घर इंतज़ार करते रहे कि किताब नहीं आई, किताब नहीं आई। ये तो कहते थे किताब भेज देंगे, भी मैंने पढ़ के आपको बात सुनाई है ना, किताब भेजेंगे, नहीं आई, किताब नहीं आई। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने खत लिखा कि आपने वादा किया था अखबार किताब भेजेंगे, भेजी नहीं आपने। कहते हैं नहीं, हज़रत साहब के दिल में खुदा ने ये तहरीक डाल दी है, ये जो 15 अप्रैल 1907 का जो आखिरी फैसला इश्तिहार है ना, वो डाल दी है। अब इसकी ज़रूरत ही नहीं हकीकतुल वही भेजने की ज़रूरत, यानी हकीकतुल वही के साथ जो मुबाहला जुड़ा हुआ था वो तो मनसूख हो गया। कहें तो वह मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ, लेकिन जो असल बात मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ वो पढ़ के इंशाल्लाह आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज से पहले आपको किसी ने पढ़ के ना सुनाई होगी, ना इससे पहले आपके इल्म में ये बात होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सारे हजरात कैसे हैं सर? ठीक ठाक है, अल्लाह का करम शुक्र। नज़ीर साहब आपको याद है मैंने आपसे परसों बात की थी? ये आमिर भाई वही लड़के हैं वो जिनसे आप बात हुई। अच्छा अच्छा, आपने कहा था ना व्हाट्सएप नंबर भेजेंगे शायद। हाँ जी, मैंने आपको उसी टाइम भेज दिया था, मुझे मैसेज मिला नहीं है। पर मैंने तो उसी टाइम भेज दिया हुआ है आपको। अच्छा, मेरे ज़हन में था कि आपने ये वादा किया, मैं उसको तलाश भी मैंने किया, लेकिन वो मैसेज वाली जो लिस्ट थी ना, सच्ची बात ये है कि वो लिस्ट ही नहीं मुझे मिली है कि जहाँ मैसेज आते हैं 20 से ज़्यादा। बाकी बात सारे मैसेज मैंने चेक किए, उसमें से कोई चीज़ मिली मैं नहीं। आपको दोबारा भेज दूंगा, कोई मसला नहीं सर। ठीक है। अच्छा, मैं एक सिर्फ इबारत पढ़ लूँ या कोई आपने ज़रूरी बात करनी है? जी जी, पहले आप कर लें सर नोट। मिर्ज़ा साहब 26 मई 1908 को फोत हुए हैं। फिर शेख साहब माइक खोलें ज़रा, आपके माइक से शोर है, आप ज़रा माइक म्यूट कर लें। आपके साथ मैं खाना खाना पे तुसी गल करो। ठीक है, सुनो, सुन रहे हो? बस एने मनु काफ़ी, तुम सुन रहे हो। ये देखें जनाब, 26 मई 1908 को मिर्ज़ा साहब फोत होते हैं, और ये है रिव्यू ऑफ रिलीजन, जो है माह जून व जुलाई 1908। बाबत जून और जुलाई का इकट्ठा रिव्यू ऑफ रिलीजन छपता था ना, इसके अंदर वो लिखते हैं, हम अव्वलन इस इश्तिहार का जवाब लिखते हैं कि सल्लमना के हज़रत अकबर ने महज दुआ के तौर पर फैसला चाहा था, महज दुआ के तौर पर फैसला चाहा था, लेकिन उस खत में साफ लिखा हुआ है कि ये दुआ किसी इल्हाम या वही की बिना पर पेश गोई नहीं है। इस दुआ के वही और इल्हाम ना होने का वही और इल्हाम ना होने का अबुल वफा साहब को भी इकरार है। आगे रही सिर्फ दुआ बगैर वही और इल्हाम के, सो हज़रत अक़दस का ये दुआ करना आपकी सदाकत की बड़ी पक्की दलील है। अगर आपको अपने मिन जानिब अल्लाह होने का कतई तौर पर यकीन कामिल ना होता तो ऐसे अल्फाज दुआ से क्यों करते जो उस ख़त में मज़कूर हैं, और ऐसी दुआएं तो हज़रत सैयदुल मुरसलीन और ख़ातमुन नबिय्यीन की भी कबूल नहीं हुई हैं। कमा क़ाल अल्लाह ताला लैसा लका मिनल अम्रि शैअन औ यतूब अलैहिम औ युअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम ज़ालिमून। यानी है पैगम्बर, आपके लिए ये इख्तियार नहीं है इस अमर में कि कौम मुखालिफ सब के सब आपकी दुआ से मारे जाएं, तो खुदा उन पर रुजू करे। यानी वो कहते हैं कि ये मिर्ज़ा साहब ने दुआ के तौर पर फ़ैसला चाहा था, ये कोई पेशगोई नहीं की थी मिर्ज़ा साहब ने कि झूठी निकल आई है। ये वो कह रहे हैं कि मिर्ज़ा साहब ने दुआ की थी, और दुआ वो कहते हैं कई बार नबियों की भी पूरी नहीं होती, नबी अलैहिस्सलाम की भी दुआ कबूल नहीं हुई है फलानी फलानी।
यानी होना तो ये चाहिए था ना हाफिज शेख साहब कि वो ये कहते कि भाई 15 अप्रैल 1907 को इश्तिहार छापा था मिर्ज़ा साहब ने, तो उसके बाद ये इश्तिहार मनसूख हो गया क्योंकि मुबाला था और मुबाला आपके और उनके दरमियान हुआ नहीं, तो ये मनसूख हो गया। वो कहते हैं नहीं, ये दुआ थी, दुआ के तौर पर मिर्ज़ा साहब ने फैसला चाहा था, और दुआ तो कई बार नबियों की भी कबूल नहीं होती, नबी पाक की भी कबूल नहीं हुई। तो ये दुआ मिर्ज़ा साहब ने की थी और उनको इस बात को तस्लीम करने में कोई आर नहीं था कि मिर्ज़ा साहब की ये दुआ कबूल नहीं हुई, बल्कि उलट हो गया है मामला। मिर्ज़ा साहब को मौत आ गई है बजाय मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी के। अच्छा, एक और तहरीर बस मिर्ज़ा साहब की मैं आपको दिखा के, तो इसके बाद वो साथी जो नए आए हैं उनकी बात सुनते हैं। ये है अखबार आपका, किस तारीख का, अल्लाह आपका भला करे। हाँ जी, 25 अप्रैल 1907, 15 अप्रैल को इश्तिहार छपा था। 10 दिन बाद ये अलबदर अखबार में मिर्ज़ा साहब क्या लिख रहे हैं, ये मलफूजात में से भी आपको मिलेगा, यहीं से उठा के मलफूज ऐसे ही बनाते हैं। सनाउल्लाह फरमाया ये ज़माने के अजायबात हैं। 15 अप्रैल 1907 के इश्तिहार के 10 दिन बाद ये लिखने लगे हैं, गौर से सुनना। ये ज़माने के अजायबात हैं, रात को हम सोते हैं तो कोई ख्याल नहीं होता कि अचानक एक इल्हाम होता है और फिर वो अपने वक्त पर पूरा होता है। कोई हफ्ता अशरा निशान से खाली नहीं जाता। सनाउल्लाह के मतलब जो कुछ लिखा गया है ये दरअसल हमारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा ही की तरफ से इसकी बुनियाद रखी गई है। यानी आज से 10 रोज पहले जो इश्तिहार छपा है ना, वो हमारी तरफ से नहीं है बल्कि खुदा की तरफ से इसकी बुनियाद रखी गई है। एक दफ़ा हमारी तवज्जो इसकी तरफ हुई और रात को तवज्जो इसकी तरफ थी और रात को इल्हाम हुआ। उजीब दावत अद्दाए इज़ा दान, है ना वो कुरान की आयत, ये इल्हाम हुआ है मिर्ज़ा साहब को, सूरह बकरा की आयत है। सूफिया के नज़दीक बड़ी करामत इस्तजाब दुआ ही है, बाकी सब उसकी शाखें हैं। ये वो दुआ है जी जिसके बारे में मिर्ज़ा साहब के बेटे कह रहे हैं रिव्यू ऑफ रिलीजन में कि दुआ कबूल नहीं हुई, और मिर्ज़ा साहब को दुआ कबूल होने का इल्हाम हुआ है। उजीब दावत अद्दा, दुआ कबूल करने वाले की हम दुआ कबूल करते हैं, मांगने वाले की हम दुआ कबूल करते हैं। और कह रहा है कि नहीं दुआ कबूल नहीं हुई। दुआ तो कबूल नहीं हुई उनकी नज़र में, क्योंकि उनका ख्याल था कि मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी फौत होंगे, हो गए मिर्ज़ा साहब 13 महीने के बाद। ये है मसला। ये हदायत की दुआ थी, हदायत मिल गई थी उनको। बहरहाल ये बिल्कुल क्लियर तहरीर है। अगर ये जो आपका नाम मैंने पूछा नहीं परसों भाईजान। जी मैं भाईजान नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मेरा नाम मलिक है। मलिक साहब, सॉरी, हाँ शायद मलिक ही लिखा था। आपसे सिर्फ ये पूछना है कि आपने ये इश्तिहार मिर्ज़ा साहब का आज से पहले पढ़ा हुआ है, मौलवी सनाउल्लाह साहब के साथ आखिरी फैसला इश्तिहार? नहीं पढ़ा सर। ये फिर आज आपको अगर इजाज़त दें तो सुनाएं जी प्लीज सर। अगर आपको कोई और बात नहीं करनी तो ये आपको सुनाते हैं। हाँ जी प्लीज सुनाइए। यहाँ से शुरू होता है जी। ओहो, कहाँ चला गया भाई, एक सेकंड जरा। हाँ, मौलवी सनाउल्लाह साहब अमृतसरी के साथ आखिरी फैसला। नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम यस्तंबऊन का हक को कुली व रब्बी इन्नहुल हक। बखिदमत मौलवी सनाउल्लाह साहब अस्सलामु अला मन इत्तबल हुदा। मुद्दत से आपके पर्चे अहल हदीस में मेरी तकजीब और तफसीक का सिलसिला जारी है। अहमद नजीर साहब जरा ये भी बता दीजिए ये किसको लिखा जाता है, ये जो आपने सलाम पढ़ा है, ये मन इत्तबल हुदा? काफर को जिसको आप समझते हैं कि ये गुमराह है, उसके लिए लिखा जाता है सलामुन अला मन इत्तबल हुदा।
ये लिखा था, कुरान में भी आता है कि किसने, सैयदना लुकमान ने लिखा था, जो एक नबी थे अल्लाह के, लुकमान लुकमान तो नबी नहीं थे आनंद भाई। नहीं, लुकमान नहीं, उनका क्या नाम था यार, वो सलमान, सैयदना सलमान अलैहिस्सलाम का। हाँ, मेरे ख्याल उन्होंने लिखा सलाम अला मन इत्तबल हुदा। अच्छा, बखिदमत मौलवी साहब सलाम अला मन इत्तबल हुदा, मुद्दत से आपके पर्चा अल हदीस में मेरी तकजीब और तफसीक का सिलसिला जारी है। हमेशा मुझे आप अपने इस पर्चे में मरदूद, कज़ाब, दजाल, मुफसिद के नाम से मंसूब करते हैं और दुनिया में मेरी निस्बत शोहरत देते हैं कि ये शख्स मुफ्तरी और कज़ाब और दजाल है और इस शख्स का दावा मसीह मऊद होने का सरासर इफ्तरा है। मैंने आपसे बहुत दुख उठाया और सब्र करता रहा, मगर चूंकि मैं देखता हूँ कि मैं हक़ को फैलाने के लिए मामूर हूँ और आप बहुत से इफ्तरा मेरे पर करके दुनिया को मेरी तरफ आने से रोकते हैं और मुझे इन गालियों और तोहमतों और उन अल्फाज से याद करते हैं जिनसे बढ़कर कोई लफ्ज़ सख्त नहीं हो सकता। अगर मैं ऐसा ही कज़ाब और मुफ्तरी हूँ जैसा कि अक्सर औकात आप अपने हर एक पर्चे में मुझे याद करते हैं, तो मैं आपकी ज़िंदगी में ही हलाक हो जाऊँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुफसिद और कज़ाब की बहुत उम्र नहीं होती और आखिर वो ज़िल्लत और हसरत के साथ अपने अशद दुश्मनों की ज़िंदगी में ही नाकाम हलाक हो जाता है और उसका हलाक होना ही बेहतर होता है। आपकी ज़िंदगी में हलाक, क्योंकि मैं जानता हूँ मुफसिद और कज़ाब की बहुत उम्र नहीं होती, हलाक हो जाता है, उसका हलाक होना ही बेहतर होता है ताकि खुदा के बंदों को तबाह ना करे। और अगर मैं कज़ाब और मुफ्तरी नहीं हूँ और खुदा के मकालमा और मुखातबा से मुशर्रफ हूँ और मसीह मऊद हूँ, तो मैं खुदा के फरीद रखता हूँ कि सुन्नत अल्लाह के मुवाफ़िक आप मुकज़्ज़बीन की सज़ा से नहीं बचेंगे। बस अगर वो सज़ा जो इंसान के हाथों से नहीं बल्कि महज खुदा के हाथों से, जैसे ताउन, हैज़ा वगैरह, मेरी ज़िंदगी ही में ताउन वगैरह मोलक बीमारियां आप पर मेरी ज़िंदगी ही में वारद ना हुई तो मैं खुदा ताला की तरफ से नहीं, ये किसी इल्हाम या वही की बिना पर पेशगोई नहीं, महज दुआ के तौर पर मैंने खुदा से फ़ैसला चाहा है और मैं खुदा से दुआ करता हूँ कि ए मेरे मालिक, अब दुआ करने लगे, गौर से सुन लीजिएगा, ए मेरे मालिक बसीर व कदीर, जो अलीम व ख़बीर है, जो मेरे दिल के हालात से वाकिफ़ है, अगर ये दावा मसीह मऊद होने का महज मेरे नफ्स का इफ्तरा है और मैं तेरी नज़र में मुफसिद और कज़ाब हूँ और दिन रात इफ्तरा करना मेरा काम है, तो ऐ मेरे प्यारे मालिक, मैं आजिज़ी से तेरी जनाब में दुआ करता हूँ कि मौलवी सनाउल्लाह साहब की ज़िंदगी में मुझे हलाक कर और मेरी मौत से उनको और उनकी जमात को खुश कर दे, आमीन। मगर ए मेरे कामिल और सादक खुदा, अगर मौलवी सनाउल्लाह इन तोहमतों में जो मुझ पर लगाता है हक पर नहीं, तो मैं आजिज़ी से तेरी जनाब में दुआ करता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में ही उनको नाबूद कर, मगर ना इंसानी हाथों से बल्कि ताउन व हैज़ा वगैरह अमराज मोहलका से, बजुज़ इस सूरत के वो खुले तौर पर मेरे रूबरू और मेरी जमात के सामने इन तमाम गालियों और बदज़बानियों से तौबा करे जिनको वह फ़र्ज़ मनसबी समझ कर हमेशा मुझे दुख देता है, आमीन या रब्बल आलमीन। मैं उनके हाथ से बहुत सताया गया और सब्र करता रहा, मगर अब मैं देखता हूँ कि उनकी बदज़बानी हद से गुजर गई। वो मुझे उन चोरों और डाकुओं से भी बदतर जानते हैं जिनका वजूद दुनिया के लिए सख्त नुकसान रसा होता है, और उन्होंने इन तोहमत और बदज़बानियों में आयत ला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म पर भी अमल नहीं किया और तमाम दुनिया से मुझे बदतर समझ लिया और दूर दूर मुल्कों तक मेरी निस्बत ये फैला दिया है कि यह शख्स दर हकीकत मुफसिद और ठग और दुकानदार और कज़ाब और मुफ्ती और नहायत दर्जे का बद आदमी है। सो अगर ऐसे कलमात हक के तालबों पर बुरा असर ना डालते तो मैं इन तोहमतों पर सब्र करता, मगर मैं देखता हूँ कि मौलवी सनाउल्लाह
इन्हीं तोहमतों के ज़रिए से मेरे सिलसिले को नाबूद करना चाहता है और इस इमारत को मुनहदम करना चाहता है जो तूने ए मेरे आका और ए मेरे भेजने वाले अपने हाथ से बनाई है। इसलिए अब मैं तेरे ही तकद्दस और रहमत का दामन पकड़कर तेरे जनाब में मुल्तजी हूँ कि मुझ में और सनाउल्लाह में सच्चा फैसला फरमा, और वो जो तेरी निगाह में दर हकीकत मुफसिद और कज़ाब है उसको सादक की ज़िंदगी में ही दुनिया से उठा ले या किसी और नहायत सख्त आफत हाँ जो मौत के बराबर हो उसमें मुबतला कर। ए मेरे प्यारे मालिक तू ऐसा ही कर। आमीन सुम्मा आमीन। रब्बना अफ्ताह बैना। ये जो आपने पढ़ा है या उठा ले, या फिर जो या जो है ना, हाँ या जो मौत के बराबर हो। हाँ हाँ मिर्जा साहब ऐसे ही करते थे, मौत या मौत के बराबर। इसी को तो मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने कहा ना कि आपने ये क्या इश्तिहार छापा है, मौत या मौत के बराबर। मैंने आपको कसम खाने के लिए कहा था, मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन बहरहाल मिर्जा साहब ने कहा कि बिल आखिर मौलवी साहब से इल्तमास है कि वो मेरे इस तमाम मजमून को अपने पर्चा में छाप दें और जो चाहे इसके नीचे लिख दें, अब फैसला खुदा के हाथ में है। ये दुआ करके 15 अप्रैल 1907 को इश्तिहार छाप के मलक साहब 13 महीने बाद मिर्ज़ा साहब फोत हो गए हैं और मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी 1948 में सरगोदा में फोत हुए हैं आके। अब आप जो बात करना चाहें मैं सुनता हूँ। बात तो वही है ना कि वो इश्तिहार तो छापा नहीं, उन्होंने उनकी बात मानी ही नहीं। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी को किसने कहा था इश्तिहार छापने का? मिर्जा साहब ने। कहाँ कहा है? अभी तो आपको थोड़ी देर पहले तहरीर पढ़ के सुनाई है कि भी ये झूठा है, कज़ाब है, दज्जाल अपने दावों में, ये मेरा नाम लिख के। वो तो पुरानी, आप वो तो 1902 की बात आप कर रहे हैं। अल्लाह जाने अब वो एजाज अहमदी की तारीख इरशाद देख लें। ये जो मैंने इश्तिहार पढ़ा ये 15 अप्रैल 1907 का इश्तिहार है। इसको मजमूआ इश्तिहार में से खोल के चेक कर लें। मौलाना सनाउल्लाह को मिर्जा साहब ने कहा था जो चाहे इसके नीचे लिख दे, फैसला खुदा के हाथ। मिर्जा साहब ने खुद दुआ की, बस अपनी तरफ से दुआ करके मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया कि या अल्लाह तू फैसला कर दे। बस अल्लाह ताला ने फैसला कर दिया। लोग मानने की बजाय वो कहते हैं कि ये सदाकत की दलील है मिर्जा साहब की। उनके बेटे ने वो रिव्यू ऑफ रिलीजन में लिखा है। वो तो है, अपने लिए कौन बद्दुआ करता है? अगर उन्होंने हिदायत की ये तरफ है तो मसला। बुलाते थे, हमारी बदजुबानी से आंखों के रोकते सामने थे। सर हमने देखा है कि मिर्जा साहब ने अल्लाह ताला से दुआ करके फैसला मांगा है, वो फैसला हुआ है। और ये फैसला होने से पहले जो 13 महीने गुजरे हैं ना, इतनी समझ आई अभी मेरे पास उनकी मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी के किताबों के अंदर लिखी हुई बातें मैं अभी खोल के आपको यही इसी कंप्यूटर से दिखा सकता हूँ, जिसमें मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने बताया कि ये 13 महीनों के अंदर मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी के बाजू में होगी दर्द। तो उस जमाने में वो जो होते थे ना नाई, वो कोई जख्म लगाते थे, खून निकालते थे गंदा, तो उससे आराम आया। सींगी लगवाना शायद उसको बोलते हैं। तो वो पच शच लगवाया। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी मरीज घर में लेटे हुए हैं। मिर्ज़ा साहब की मुरीद अमृतसर में उनके घर की दीवार से जाकर यूं कान लगा के ना सुनने की कोशिश कर रहे हैं कि मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी फोत हो गए कि नहीं फोत हो गए। औरतों के रोने की आवाज़ अंदर से आ रही कि नहीं आ रही है। इंतज़ार किया 13 महीने। जब उस इंतज़ार के बाद मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी की बजाय मौत मिर्ज़ा साहब की आ गई 26 मई 1908 को, इन्होंने कहा ये तो मिर्ज़ा साहब की दुआ थी। तो दुआ तो नबी पाक की भी कई बार कबूल नहीं होती। अब क्या जवाब दें इसका? ये तो फिर इस जिद का तो कोई इलाज नहीं है ना मेरे प्यारे भाई। वो तो फिर हज़रत नूह के जी बेटे मलिक को साहब भी आपकी हिदायत बात नहीं करना मिली। सवाल पूछना चाहते हैं, पूछ लें। हज़रत नूह के बेटे को हिदायत नहीं मिली, अल्लाह के बेटन को भी हिदायत नहीं मिलेगी। प्लीज बताइएगा कि मौलाना अमृतसरी साहब की कब वफात हुई है और मिर्जा साहब की कब हुई है? मिर्ज़ा साहब 26 मई 1908 को फोत हुए हैं जी जी। और अमृतसरी साहब 40 साल बाद
मार्च 1948 में सरगोदा में आके फोत हुए जब पाकिस्तान बन गया था। अच्छा अच्छा। मौलाना सनाउल अमृतसरी साहब उनके बाद 40 साल तक जिंदा रहे। मैं आपको इनकी एज का डिफरेंस कितना था? हाँ, ये छोटे थे, मौलाना सनाउल अमृतसरी छोटे थे, फिर काफी छोटे होंगे ना? काफी छोटे थे, क्योंकि मिर्जा साहब की उस वक्त उम्र 41 91 में कितनी थी, 50 साल। हाँ, मिर्जा साहब की उम्र 52 साल थी, तो मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी 20 कोई साल के होंगे, पढ़ के आए हैं मदरसे से 91 में। ये मेरे ख्याल में अभी चेक कर देता हूँ, मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी शायद 70 के आगे पीछे उनकी पैदाइश है, मैं चेक करके आपको बताता हूँ। जी जी। छोटे थे बहरहाल, मिर्जा साहब से काफी छोटे थे, 30 साल से छोटे। आपने अभी जाना तो नहीं है ना? नहीं, मैं फ्री हूँ, बिल्कुल घर में हूँ। मुझे आप बस 35-40 मिनट की ब्रेक दे, मैं जॉब पे कोई हूँ। मसला नहीं, मैं अभी कोई आपको मसला नहीं। आपने मुझे बताया था कि इनके घर पे कोई हैंड ग्रेनेड फेंका गया। हाँ, लेकिन मैं तो ये जो मेरे पास कह रही है उसमें तो कहते हैं कि कोई डकैती की गालबन, लुटेरे वगैरह कोई नहीं चोर नहीं डाकू आए नहीं थे। नहीं 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 नहीं, सिखों ने और उन्होंने तो बकायदा कहते हैं उनके बेटे को ज़िबा किया ओ था। ओ भाई, ये झूठे लोग हैं। मैं आपको यही तो अर्ज करता हूँ ना, आंखों के सामने बाप की आंखों के सामने बेटे को ज़िबा किया। ये और वो ये बिल्कुल झूठ बोलते हैं, बिल्कुल झूठ बोलते हैं। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी के घर में 13 अगस्त को जब लूट घसूट का बाजार गर्म था, आपको भी पता है कि गवर्नमेंट बरतानिया ने ऐलान किया था कि 14 अगस्त की सुबह को, यानी रात 12 बजे, 13 अगस्त की रात और 14 की जो दरमियानी रात होगी, 12 बजे के बाद पाकिस्तान अलग होगा, मुल्क हिंदुस्तान अलग हो। उस रात तो वो 12 को, 11 को, 10 को, 13 को लूट घसूट चल रही थी पंजाब पूरे में। वो उनके दरवाजे के आगे से सिखों का जुलूस गुजर रहा था। उन्होंने देखा कि ये मुसलमान घर है, उन्होंने दस्ती बम इनके सेन में फेंक दिया। दीवार ऊंची थी, नजर उनको नहीं आया कि हमने वैसे ही फेंका है या कोई बंदा अंदर शहीद हो गया। वो बम ला के लगा इनके बेटे को, ये वहां पर शहीद हुए हैं। शाम को इन्होंने जनाजा पढ़ाया है। मैं अभी आपको उनकी जो है ना सनाउल्लाह अमृतसरी की वो निकाल के दे देता हूँ, उनकी सीरत से ये बात निकाल के दिखा देता हूँ। यार ये झूठ बोलते हैं डकैती हुई थी, और अल्लाह माफ करे आपकी आंखों के सामने इनके झूठ रख दिए गए, फिर भी आप कहते हैं कि ये भी तो नहीं मानेंगे, इसलिए मुझे इजाजत दें। आपका तो आप तो हजरत नूह के बेटे की तरह मेरा ख्याल है मुज़िद लग रहे हैं, नहीं मानेंगे, आपको हिदायत नहीं मिली। आपने अपने डॉलर कमाने हैं, वो आप लगे रहे। सलाम अलैकुम। अच्छा आमिर भाई, वैसे भी ये जो मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमुल्लाह के बेटे जो शहीद हुए थे, वो तो बात होगी 47 की। तो मिर्जा साहब के मुबाहले के बाद उनकी जिंदगी में ही जब उनका बेटा मरा था मुबारक अहमद, तो उसके हवाले से इन लोगों का क्या अकीदा है? क्योंकि वो तो सनाउल्लाह साहब ने ये बात कही भी थी कि मेरे मुबाहले का असर। हाँ, ये बच्चों जैसी बात। कि इस तरह के जिनके घर के उनके साथ हुआ थे, उनको सीरत सनाई में से उनका दिखाता हूँ निकाल के। बहन साबित भी कर दिया तो आपने फिर कह देना है आपको हजरत नूह के बेटे की तरह हिदायत नहीं, मैं क्यों कहूंगी हिदायत मिलेगी तो मैं भी अपनी हाँ, तो मौत जो के लिए मर्जी दुआ तो बंदा करूंगी, करता जैसे नहीं। मिर्जा गुलाम अहमद ने की, हम भी उन्हीं को मानते हैं। अगर हिदायत नहीं मिलेगी, हिदायत मिल जाएगी तो इससे बड़ी मेरी मौत की क्या हैसियत है? यार वो मैंने किताब मैं तो इनकी कहाँ मानूंगी। पे रखी है? क्या वही तो मैं भी कह रहा हूँ ना कि इनके असूल देखें कि 47 में उनका बेटा शहीद हुआ है तो उसको मुबाहले के साथ जोड़ रहे हैं, और जो मिर्जा साहब की अपनी जिंदगी में ही, सनाउल्लाह साहब की जिंदगी में ही मिर्जा साहब का बेटा मरा है, उसको मुबाहले का असर भी करार दिया गया, वो असूल यहाँ पे लागू नहीं होगा। कमाल नहीं वैसे? कमाल दी भी लत बनती है। जी जी, आप कोई बात करना चाह रहे हैं, कर लें आप।
ਬਾਸਿਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਤੇ ਕਰਾਚੀ ਤੱਕ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਦਵਾਈ ਅਜੇ ਹਜ਼ਮ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਪੱਕੀ ਲੈਣ। राह मार नहीं, ये संजीदा बात हो रही है, गैर संजीदा आदमी को फिलहाल ना लें। नहीं नहीं वो तो नहीं। सीरत सुनाई अहमद साहब, जस्ट आपके लिए एक सवाल है। ये होता है कि देखिए कोई भी टॉपिक हो ना, तो उसको जब इंसान फॉर एग्जांपल स्टडी कर लेता है, जैसे जी मिर्जा साहब के खिलाफ है। भाई जरा ना पोज अच्छा बनाना, मैं थल्ले बंदे ना अपने स्क्रीनशॉट लेना है यार, जरा तस्वीर ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਛੀ ਆਵੇ ਤੁਹਾਡੀ। मेरी ਹਾਂਜੀ ਬੰਦੇ ਥੱਲੇ ਆਏ ਯਾਰ, मेरी छोटी कर दो, मेरी पिक्चर छोटी कर, ਤੁਸੀਂ अपनी ਵੱਡਾ ਕਰੋ। नहीं नहीं नहीं, मैं भाई बुढ़ा बंदा, मैं मेरी कानो। अमन जी साहब ये सीरत सुनाई ਦਾ ਸਫਾ 399-90 ਹੈਗਾ ਜੇ। हाँ जी, मैं खोल ली सीरत सुनाई डायरेक्ट ही ना, मैं इंटरनेट तो खोल ली है, 380 मैं तो दिखा देना। हाँ जी, ਨਜਬ ਭਾਈ ਤਾਂ ਨੋਲਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਸੀਟਾਂ ਹੋਲ ਨੇ। कौन है थल्ले मैसेज? मैनू तो ना पता नहीं, कोई प्रॉब्लम हो जाती है मोबाइल, झट बाद ब्रॉड ही नहीं नजर आती है। यह सीरत सुनाई किताब है, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉਤਾਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਦਿਆਂਗਾ। ए मलिक इमरान कितने नजर ही नहीं। कितने सफे क्या जे 300? ਉਹ ਭਾਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ हैं, मेरे ख्याल से कहते हैं वापस आएंगे ना। कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, अपना टाइम लिया कहंदे मैं ठहर के आंदा। अपना कितना सफा तुसी क्या है? 389 390 399-90 ਵਾਲੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਜੇ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਵੱਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ये ਆਓ। आ गया 390। जरा हम बताइए जरा रजब फादी जरा ले आइए अच्छी जी तस्वीर। ਇਹਦੀ ਤੇ नजर ਲਾਓ पास ਨਾ कितने मतलब नजर ही नहीं आ रहा ना ब्रॉड दे। मैं बैठा अमर भाई, दो जी तस्वीर दे जी, तस्वीर दे। 390 ਤੇ 389 ਤੇ ਮਨਾਜ਼ਰਿਆਂ ਦੀ ਖਸੂਸੀਅਤ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਨਜਬ ਬਾਤ ਤਿਆਰੀ ਤੇਰੀ ਪੂਰੀ ਬਾਤ, ਤੇਰੇ ਨੱਕ 'ਚ ਰੂਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਾ, ਲੰਮਾ ਤੇ ਇਹ ਪਿਟਣੀਆਂ ਵੇਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੂੰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜਦਿਆਂ ਉਹ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਕਿ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਲੇਟ ਆ। मेरी पिटनिया देखो, आई मैं पिटी गई। ये इल्मी और अक्ली और ईमानी बातें हैं, ये आपकी समझ में नहीं आए। अच्छा हाँ ਲਓ ਜੀ, इंशाल्लाह ਇਹ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਵਾਲਾ। अल्लाह ताला ਤੁਹਾਨੂੰ हिम्मत देवे। 14 अगस्त 1947 को यानी यौम आज़ादी से एक रोज़ पेशतर आप अपने वतन मालूफ को हमेशा के लिए खैरबाद कहकर हिजरत फरमाए पाकिस्तान हुए। और एक मिनट ठहर जाओ, उन्होंने बेटे का कितने लिखे है? है जी, फरजंद दिलबंद की शहादत नजर आ गई जी। जब आतश फसाद बेकाबू हो गई तो हज़रत मौलाना ने हिजरत का कसद फरमाया। अरकान जमात और दीगर अहबाब से मिलकर एक प्रोग्राम मरतब किया गया। एक मुख्तसर से इजलास में तर्क वतन की तजावीज़ पास करके घर तशरीफ़ लाए और पास शुदा तजवीज़ों पर गौर फरमाने लगे। जिस गली में आपका मकान था उसकी हिफाजत का ज़िम्मा आपके इकलौते फरजंद मौलवी ताउल्ला ने ले रखा था।
اور فساد کے ایام میں وہ اپنے اور دوسرے مسلمانوں کے مکانوں کی حفاظت کے لیے پہرا دیا کرتے تھے۔ رمضان المبارک کے آخری ہفتے یعنی 13 اگست 1947 کو ہندوؤں اور سکھوں بلوائیوں کا ایک جتھا اس گلی کے قریب سے گزرا۔ مولوی طاء اللہ صاحب حسب معمول نگرانی میں مصروف تھے کہ کسی نے ایک مکان کی چھت سے دستی بم پھینکا جو مولوی طاء اللہ کے بالکل قریب پھٹا اور پھٹتے ہی ان کو شدید زخمی کر گیا۔ حضرت مولانا کو اطلاع ملی تو آپ نے 2-4 رفیقوں کی مدد سے انہیں چارپائی پر لٹایا اور ہسپتال کو روانہ ہوئے۔ ابھی تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ مولوی عطا اللہ شہادت پا گئے اور بحالت روزہ مالک حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہن کون آکھے گا جی کہ انہاں دے گھر ڈکیتی ہوئی تے چوری ہوئی تے بیٹے نوں انہاں دے سامنے ذبح کیتا گیا جی؟ یہ مولوی عطا اللہ کا ذکر آ رہا ہے، آپ مولوی ثناء اللہ امرتسری کی بات کر رہے جی ہیں، شیخ آپ صاحب نے ویکھ لیا بات ہی ثبوت؟ بدل دی ہے۔ ہاں جی کیا محترمہ کہہ رہی ہیں کہ تسی مولوی عطا اللہ دی گل کر رہے ہو؟ عطا اللہ انہاں دے بیٹے دا نام ہے، ہاں بیٹے دا نام ثابت کریں نا، اکیلا ہی شجرہ بیٹا نسب سی او لے دا کے نام، آئیں، پھر میں اتو پڑھ کے کسی سناواں۔ کتاب سے ثابت کریں جو سب پڑھ اس کی سکتے ہیں، حفاظت کا ذمہ ان کا آپ کے شجرہ نسب اکلوتے نکالیں۔ بیٹے مولوی طاء اللہ نے لے رکھا تھا۔ اکلوتا بیٹا سی، طاء اللہ انہاں دا نام سی، شادی شدہ سی، اودے 4 بچے سی۔ انہاں دا اگوں پڑپوترا ہے عرفان اللہ سنائی، کڈا میں اودی پکچر اتوں؟ ہمیں کیا پتا، آپ باتیں بنا رہے ہیں، کس سے کہانیاں ہیں کہ یہ کوئی کی بنو بیٹا دنیا تھا بس۔ بھی، ہمیں کیا پتا۔ ٹھیک ہے محترمہ، آپ بس سنیں نہ، چپ کر کے سنیں، بات کرنے دیں، آپ سنیں فی الحال۔ بھائی آواز مجھے نہیں آ رہی، کوئی اور کریں محترمہ کہ بھی ہے بیٹا اوپر؟ تھا، احمد صاحبہ کہہ رہی ہیں وہ کہ یہ احمد ان کا صاحب بیٹا بول تھا رہی کہ نا، یہ تو پتا پہلے میرا حرامی بات تھا کہ سنیں۔ بیٹا تھا۔ وہ کہاں پر ہیں؟ بی بی مہربانی کرے الفاظ نہ استعمال کریں ایسے۔ بہن بات سنیں، ایسی آپ زبان بھی مسیح استعمال نہ موعود علیہ کریں۔ السلام کی آ جائیں اور حرامی کون یہ حرامیہ زبان استعمال کر رہا ہے؟ مد زنا کے الفاظ جو بھی کر استعمال رہی ہیں کرتے جی ہیں، آپ احمد صاحبہ۔ نہ کریں، نے خود استعمال کیے ہیں، ہمیں بھی کیا ہو تکلیف گیا آپ ہوتی ہے۔ کو؟ ان کے فرشتے نے آپ کہا کو تھا جھوٹوں پہ پاسورڈ تکلیف حمزہ ہو نے رہی ہے، کہا ہمیں نا۔ سچوں پہ نہ ہو۔ ٹھیک ہے، چلیں آپ مائک بند رکھیں فی الحال۔ یہ ہے ان کا پڑپوترا عرفان اللہ سنائی۔ یہ مولانا ثناء اللہ امرتسری کے پوتے کا بیٹا ہے جو عطا اللہ شہید ہو، ان کا یہ پوتا ہے، سرگودا میں ہوتے ہیں۔ ادھر کے قریب درے میں ادھر بھی کیا لکھا ہوا ہے یہ پڑھ کے سنا دیں، پڑھا نہیں جا رہا ان کا نام۔ عرفان اللہ سنائی، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث۔ میں نے تو آپ کو مثال دے دی کہ میں حضرت تھلے کے اتر کے بیٹے اتنے ہیں آواں یہ، اپنا بلال صاحب، ہمیں پھر تو مینوں ہدایت پرابلم ہون ملی لگی، ہے نظر ہی نہیں کہ پہ آگے آتے امن پیچھے پڑھنا۔ عزیز چلے صاحب، گی۔ گلیچ کوئی ہو گیا، تسی اپڈیٹ کی، اچھا دسو اپڈیٹ کی تھی ٹک ٹاک تساں؟ نہیں اپڈیٹ تو کوئی نہیں میں کیتی تھی، وہ شاید لازم کرو امن نا، نذیر صاحب، اپڈیٹ کرو۔ امن نذیر صاحب، میں نے آپ کو ہاں جی واٹس ایپ پہ وہ بھیجا ہے صفحہ، وہ ذرا وہ دیکھیں نکال کے۔ اچھا عمر بھائی، تمہیں 5 سیکنڈ یا 10 سیکنڈ لگنے ہیں اپڈیٹ کر کے تے اے میں لٹی گئی، اے میں پٹی اللہ تھوڑا جہا سکرین شاٹ لیو ویکھی حسن مال پیندا اے اچھا حسن عامر مال بھائی اپڈیٹ کر کے تے جلدی دے نال آؤ۔ ویکھی حسن مال پیندا اے اتھے رکھ بھائی تسی اگے ستے ہوئے سیگے، لمے پے سیگے، میں کہ بس روئی دی کمی سی کہ باقی تے ٹھیک سی، نک چ روح لے کے۔ نہیں تو پٹنا ہے، تو رونا ہے، تو انج نہ ہائے ہائے میں لٹی فوٹو لینی ہوئے تو دسنا سکرین شاٹ لین بھائی واسطے صاحب ہاتھ تیرے تیار ناگے بیٹھے روئی نا۔ دے چکر اچ نے آہا آہا بھلے لیڈیز ہے پر کوئی نہیں لا لیتی اسی اب میں نہیں بڑھیا کرو یار، اب میں نہیں بڑھیا کرو۔ تصویر ہی کیا پتہ لگے گا کہ لیڈیز ہے کہ جینٹس ہے۔ اچھا ہن میں اے لو جی اپنا مینوں بھیجیے اسکرین شاٹ بھیجا ہے انہوں نے محترم حفیظ شیخ صاحب نے، اے دیکھنا جی حفیظ شیخ صاحب، انہاں جھوٹیاں نوں پھر کی آکھو گے تسی جنہاں نے تانوں اسکرین شاٹ کلیا ہے؟ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ آمین ثم آمین۔ اے ویکھو جی انہاں دے بیٹے دی شہادت میں تانوں دکھا دتی ہے نیٹ تو،
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਨੇ, वो अपने दीगर चीजों के मेरा निकल में, लेकिन इनकी आंखों के सामने उनका जवान अकलौता बेटा ताउल्ला जिस तरह बुरी तरह ज़िब्बा किया गया, उसने उनके कल्ब और जिगर के टुकड़े टुकड़े कर दिया। साबित हो गया ना कि वो कत्ल हो गया था। जो है शहीद। वो सिखों और हिंदुओं के जुलूस के आगे एक मुजाहिद हिफाजत घर की करते हुए शहीद हुआ है। अल्लाह ने आपको हदायत देनी है तो अल्लाह के हाथ में है। हम तो यही दिखा सकते हैं कि ये झूठे लोग अपनी बेटा आंखों कत्ल से हो गया देखें। तो नस्ल कहाँ से निकल आई भाई वो सुनया ना तुसी भी, उनकी अल्लाह छितर नहीं मारता, मत मारता बंदे दी। हरामियों की नस्ल चली आगे। वो तो मैं साहबा मैं आपसे फिर गुजारिश कर यार रहा हूँ, इनको क्यों प्लीज ऊपर ले लिया है ये सिस्टर प्लीज को, प्लीज नहीं, मैं गालियां दे आपके रही हैं। अल्फाज दोहरा रही हूँ, आपके नासर अल्फाज दोहरा बट रही दी, हूँ नासर कि बट आप साबित करें ना कि बल्दे ज़ना नहीं है। जाके इत्थों उठ दी इन्होंने मेरा ख्याल है कुछ शामिल सिस्टर आपने मेरे ख्याल है कोई किया हुआ है चीज तो इनको उतार दें। कोई चीज पी ली है आज या खा ली है तो आप सिस्टर हैं, नहीं खाया पिया कुछ नहीं, गिलास इस थोड़ा तरह के बारह अल्फाज ना आने, बोलें। इन्होंने कुछ पिया हुआ है तो इनको उनके उतार दें। उनके बेटे की शादी थी हुई और उनके 4 बेटे थे आगे से। बेटा फोत हो गया, शहीद हो गया, लेकिन पोते तो शहीद नहीं ना हो गए। 4 पोते थे उनके आगे। साबित करें ना पोते के कब पैदा हुए, शजरा निकालें अपना। आप शजरा निकालें। एक मिनट, आप साबित करेंगे आप अपने बाप की असली औलाद है। अच्छा डोपर बच्चियां नाल औरतां नाल ना बहस करो। तो वो भी थे इसमें नहीं, क्या? पुर करो बिलाल भाई छो नसब कितने ਅਸੀਂ दूसरी बराट उते बड़ा जबरदस्त मुनाजरा होया जी। किदा पीर इसकानी और चौहान और नवीद बड़ैच, तो बाद चू पता लगा जी मिर्जा साहब ने तो दावा ही नहीं लगा किसी नून तक। 1.5 घंटा हो गया दावा